Okay. So, good evening, all of you. Uh, thank you, Satish Maldarji, for taking this initiative. And we are here today to sort of discuss a unified approach to our abandoned yearning, which is the return and rehabilitation. See, what has happened is how the thought came up was we just realized that our return and rehabilitation has been abandoned by one and all, especially given the developments in the recent past, given the developments by the political parties. It seems that nobody is bothered about the cause. And we have multiple agencies. KPs are being represented by multiple agencies, geographically diverse by concept, diverse by thinking. So but the cause, the return and rehabilitation is something which is common to all of us. And what we were discussing earlier, the thought came during a discussion with Satish Mahandarji. The thought came up with creating a unified platform, get everybody together, and just have a unified approach to return and rehabilitation, irrespective of the multiple agencies that represent us, multiple internal agencies, I mean. So with that, I would just open the floor, and we will keep it a very brief session. We'll try to wrap up before 9 India time, and I think we'll just give it about five minutes to each of the participants, and everybody is welcome to give up their given their thoughts. And the basic concept is that we think we have been ignored, and especially with the present government, especially what had happened is after 2019, the hopes were very high, and Kashmiri Pandits were thinking that post abrogation of Article 370, there's going to be a drastic change. The government is going to do wonders for us, but it seems that not much is happening on that front. We are being ignored, especially with the recent visits with the recent visits of the Honorable Prime Minister and the Home Minister, the statements by the Home Minister. We realize that there's not much in it for us. And so we'll have to wake up ourselves, we'll have to unify our thoughts and come out with some kind of a strategy. So I would start without wasting further time. I would start and invite Dr. Vijay Sazawal to start this discussion and give us his thoughts. Dr. Sazawal, over to you, sir. Namaskar to everybody. Let me see. Am I unmuted? Yeah. Namaskar to everybody. I'm pleased to be part of this program. Thank you for for the Jammu and Kashmir Peace Forum for organizing it. I think that I'll start with some basics and then let people also obviously contribute what they can. I'll start with the idea that plus JKPF is a non-political, non-dimensional, denominational forum. So I don't think we'll be served well to criticize governments A, B, or C, or D. I think we have to kind of more or less assume the governments are all doing the same thing, and at the end of the day, whatever we do has to be an approach that is something that we have not done in the past. Because if at the end of this session, if you come back and say we'll build up this another memorandum, I would say you are doing the same thing that has been done a million times over. Or if you say, let me come back and we need to create an advisory committee, I would say that recommendation has been sent 10,000 times, or if not more. Or if we criticize one or B or C, again, I think that again, I think the purpose of the discussion should be more to look at the future rather than the past. And the only way you have to recall the past is to be able to say, well, this is something that we have not done in the past. That's the only way I would look at the past, not do things that we have already done in the past, and look forward to doing it. Part of the challenge that I see for Kashmiri Pandits is really not being able to assess exactly what is the position of the governments or position where they are right now, because that part of the study is not there. There's a certain expectation the community has, which has not been obviously very clear. That expectation has not been met in 34 years, one way or the other.
And so for us to repeat doing what we have been doing in the past, I don't think that really will lead us to a successful future. I think if I have to give an advice to this very distinguished group here, it would be, if you are thinking about a problem that we are facing, you have to also come back with a solution to that problem within the contours of what can or cannot be done. And part of the challenge is really understanding what is available there, both in terms of the Indian polity, what can be done, and also in terms of the administrative systems that are already in place. And I would even argue to a large extent, we have to look also at the other community, the majority community, Kashmiri Muslims, as to how they are tackling some of their issues, and is there some lessons that we can learn from their experiences of how they are taking advantage or not taking advantage of things. I mean, we are now in a situation where, quite frankly, the valley is developing at a very, very rapid pace. So it's very sad for us to see that we are sitting, outside the window, looking at the inside. It's almost like there's a five-star hotel working inside where people are having a great time and great fun, and we are standing outside and we're looking through the window and seeing what a wonderful world there is inside, and just not being able to understand how we can enter or we can participate in that process. So I would request this group that please come back with solutions that are not there, that have not been yet made, and don't repeat the same mistakes and errors that we have done in the past. Don't make recommendations that have already been tried and tested and never worked, and come back with a solution. But frankly, if you feel there's a problem, then we need to come back with a solution within the polity and within the administrative strictures of the Indian government in general and J&K state, or UT in particular. With that message, I will, Sunilji, I'll pass on to the next speaker. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Satishji, would you want to go next? Satishji, unmute. I will request that let our seniors and the guests come up with. Probably then we can have some words. Okay. In which case I will move over to Bharat Katru. I think Bharat Katru has joined us. He can enlighten us with his views. Bharatji, you will need to unmute yourself. Namaskar to all. I have just joined. I want to listen to some other voices also. Then I will come back. It's my humble request. Okay. Let's go with the Kemuji, Kishan Kemuji. So, I was about to go there only. So, Krishan Kemuji, over to you. Krishan Kemu represents, he is the president of the Bombay Association. And we all know that Bombay Association is very active. They've been doing a lot of good work in the past. And especially they've recently opened up a good gallery there. I just saw the video, which is really appreciable. So, Krishan, over to you. Namaskar, Sarni, and thank you, Sunil, for all the appreciation. But at the outset, let me also say that Bombay Association, in its constitution, has a very clear identification as a non-political organization. So we usually don't get into political things. We are social, cultural. Give me a minute. I think if you can somebody else, I have to just go and unlock the door. My wife is knocking outside. No, it's okay. If you can pass on, I'll come back in a minute. Yeah. No, we can wait for you for a minute. Doesn't matter. All right. Sorry for that break. He's back. Okay. Yes, you were referring to the gallery. There was a gallery of culture which was under preparation for last couple of years. It's still not complete, but yes, we have opened it out because 70-80% is done. We have some more work to do. Now, coming back to today's topic, a very complicated one and very challenging task to get a unified opinion. I mean, knowing from the past what we know, we are the number of associations or groups we have is far more than what we account for. And we are scattered now all over the world. And that was one of the objectives why we wanted this gallery, because when you are scattered,
the biggest threat is to the culture, and it starts from language. Okay, language is what binds you all together. So you have to keep something, do something to preserve the language and keep the culture together. Otherwise, your identity is lost. That's why we wanted to create this gallery of culture, which we did. Now, my point is, first and foremost, I appreciate what Dr. Sazaul said. It's a very important point. We are very small in number, and in a democratic setup, we figure out nowhere. And I have also noticed that in the past, we as a community tend to expect too much from the governments. When in the vote bank politics, we don't figure out anywhere, fraction. And therefore, we should stop expecting and criticizing the government. That does us no good. And we still criticize the government. This government is not doing anything. This government is not going to do. We expected too much from them after article. All those things they become just narratives, because unfortunately we lose any goodwill we may have with anybody, and that's what I've heard has happened. Now, I am not connected to government, but from our own people from various places, I've heard that in the past, whatever meetings they had with the government, some meeting broke down, and I don't know who said what, that they lost the home minister lost interest. Whether it's true or not, whether it's just a rumor, I don't know, but that's what I've heard. So the point is, let's forget about criticizing the government first and foremost, because whatever we do, we have to do in collaboration with the government as and when it happens, in whatever way. The second point is, even if government, knowing the politics of J&K, even if government were to have some plans or was to work on some plans, they do not make it obvious or announce it. Because every time they announce, there is a huge resistance from J&K, and the politics takes a completely different turn. That they are bringing people from outside, they want to change the demographics of J&K. Therefore, whatever, I mean, as I said, I don't know what the government is doing or not doing. I don't want to even contemplate on that. But even if, I'm just assuming, even if they had some plans and would be doing, they would not make bold statements about it, because there is bound to be reaction, which we have seen in the past. So it would be in a camouflaged way or in a under the table way, if at all they have anything. We don't know. I don't know. Honestly, if someone knows, well, fair and good. But I do get feelers that feelers, again, could be rumors that sometimes something is being worked out in some ways. I leave it as and when it happens, I join it. The question is, what do we do? Honestly, I don't have an answer to get a unified approach. If somebody has thought about it, great. Because I have seen we have a Parun Kashmir approach, we have a AIKS approach, we have some other approaches. Somebody says 3 villages, somebody says 1 place settlement, and there is no consensus on this. And I'm aware when initially this government started, and when they tried to get a feeler from KP community, they had sent representatives to various places, including Bombay. One gentleman had come here, met the people here. They came back with a feeling that the people are settled abroad, they don't want to come back. And this is also a statement which many people make, that we don't want to go back. What will we do there? We are now settled here. That's another risk. The point is, therefore, we first need to get a consensus. Look, people are settled in Bombay, Delhi, Gurgaon, USA, UK, wherever. But the point is, everyone wants some bit of connection to the homeland. Nobody wants to give it up. Whether it would be a place which he owns and he would go back to as and when he likes, he has a right. He should have access to that. So with that approach in mind, whether we are scattered or not, whether we want to go and settle down or not, who wants to settle down, who doesn't want, is not the question we should debate. We all want to have some connection with the place where we were born and brought up, our ancestors were there, and we should be in a position to go as and when we want to go. With that in mind, we need to think on those lines and have some kind of approach how we can go and find some kind of settlement to begin with. Well, then we can approach the government. Government can, in its own way, whether they can help directly, indirectly, we would look forward to that. As I said in the beginning, I honestly don't have a solution in mind. These are just thoughts which I could think of, and I have conveyed them. Therefore, I would request that we listen to everyone's point of view, and then we can maybe have some structured approach. We can work out on that. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah, I think we should ask Mr. Ashok Manvati to go next. Yes, yes. Ashok ji. Ashok Manvati ji.
Am I Ashok audible ji, now? you're audible now. Huh? You can take your headphones off. Okay, I put it off. Sarvatra Namaskar Mara once more. The topic is very complex as much we are as a community. With due respect to everybody, we have very diverse opinions, individual opinions, collective opinions about the subject. And because of that very diversified approach only, we are where we are in the last 34, now coming in the 35th year. Anyway, that is the part of our life, that is the part of our community, that is a part now as individuals as well. So we cannot deny that, we cannot segregate ourselves from that totality. As Sajol Sahab has also said, and Kemu Sahab has also said, you see, when we are dealing with the government or when we are expecting something from the government, the best thing is not to criticize. But unfortunately, that is generally what we do. We start with the criticism and then end with one kya. Yesterday, I don't know, like name, many of you must have read that letter. Somebody wrote a letter to the Amit Shah. It was a very good letter. But उसने last दो sentence में सारा बेड उसका खेल खराब कर दिया उस चिट्ठी का. दो सेंटेंस उसने ऐसे डाल दिए उस लेटर में, सारा जो मजा ही उस लेटर का बर्बाद हो गया. तो We lost the video. हेलो, Hello, we lost the. I couldn't hear the sound. मैंने कहा जब जो कल लेटर थी लिखी थी किसी ने अमित शाह को, that was on the WhatsApp groups also. The letter was good, the beginning was good, the paragraphs were good, but the end of that letter, उसने दो sentence ऐसे लिख दिए, he challenged the authority of Amit Shah as the Home Minister. So that changed every dimension of that letter. But that is our habit, including me. I include myself in that, because we are as a community cannot isolate our individual behavior from the collective behavior that we exhibit with the authorities, because it impacts all of us, individually as well as collectively. You see, what's very important today is that why we are discussing, as I understand, is because of the coming elections. What we expect from the government is, of course, rehabilitation. But we have as many diverse opinions about the rehabilitation for various reasons. In 1992, 93, 94, up to 97 almost, we had only one option was there, that was Panchayat. But subsequently, because of various reasons, because of the community having been forced, I would say forced to trot around the globe for economic reasons, for rehabilitation, finding their rehabilitation, economic rehabilitation, I would say. Today, for various reasons, we have different opinion about going back to Kashmir. Rightly or wrongly, I would not like to go into those merits and demerits of that, because that's not the discussion here. But one thing is very clear, without ambiguity, we must write to the government, ask the government to include rehabilitation of Kashmiri Pandits in their manifesto. In fact, all the political parties, be it Government of India, Bharatiya Janata Party, Congress, or PDP or NC, as Kemu Sahib has rightly said, government, what they are, even as Sajal Sahib said, what government is thinking behind the curtain about us, we don't know, we don't have the perspective about that. Maybe they are thinking better than what we may even conceive today. But that is secondary, because we don't know, we have no access to that. But point is, we must knock at their doors. I say doors, knocking at the doors, because we are living in a democracy, and in a democracy, unless you don't knock the doors of the political parties or the administration, nothing actually happens. And as much loudly as you can knock the door, then only things can be done
in a democracy. So therefore, we must, this is the time, I would not say right, but this is the time, and we must use this time to approach, communicate, especially to Bharatiya Janata Party and to other political parties, including National Conference, Congress, and PDP, all local political. You see, we may like or we may dislike it, because ultimately, whatever be the rehabilitation module, it has to be ultimately implemented to J&K's state government or Union Territory of Jammu and Kashmir. Central government can only give a directive, but the implementation has come to the local administration. Whatever schemes have been implemented, whether it be PM package employees or whatever it is, it has been there. As everybody knows, or even the relief that comes through the state, it doesn't come through any, doesn't come through a Delhi government or anything else. It is rooted through the Union Territory of Jammu. Therefore, my humble submission is that during this discussion, whatever points we can conclude or concretize, that we may write to Government of India, including a copy to all the other political parties of the state, that you must include our rehabilitation in your manifesto. As far as you must be knowing, Rajnath Singh ji has been made the chairman of the drafting committee for this election manifesto. So we can write to him also. We can write to JP Nadda also. We can write to Amit Shah also. Copy of that letter. Same letter can be addressed to, or with some change in the language, to the National Conference, to PDP. Why I am saying National Conference and PDP and all that? You see, they have been beating about the drum lately in the last 4 or 5 years that Kashmir is incomplete without Kashmiri. But a reflection can of that be only through if they include that in their manifesto. So that is very important. What is the model of rehabilitation and all that? That's not the point here. Neither will they define how we can do that, nor we should do that. You would rehabilitate us this way. Because as many people as we are, as many associations we have, as many models have been written individually or collectively or through all those associations to the Government of India during the last 33, 34 years. So they know what we may be expecting, but what they ultimately want to do with us. So let us not write them now that we want this to be done. We want this commitment. Yes, in the coming 4 years, 5 years, we will rehabilitate you. Whatever the model that can be discussed in subsequently. That's a different issue altogether. But the objective must be that our rehabilitation is included in their election manifesto. I would conclude here, and so that listen to others, and so then we can proceed on further. Thank you, Ashok ji. So can we move on to Sanjay Dharji now? I just, before we proceed, let's introduce to the people, to the members, 4 members here. We have got Rakesh Pardesi ji from PDP. We have got Sanjay Sarab ji from RJLP. We have got Srimati Anita Chandpuri ji again from the RLJP. We have got Daisy Rana ji from Apni party here. And of course, we have our beloved Ashok Banji also here. So welcome everybody. And accordingly, you can, in fact, they have listened to you. And since we have the representatives from the political parties and I'm expecting the people from the National Conference also to join, so that they can hear how the community is looking forward to what's their expectations of the community. Thank you, Suriji. Please take it over. So I would request Sanjay Dharji to
give us his thoughts, but please be brief because we got a number of speakers lined up. So Sanjay Darji, if you can very briefly take about 2-3 minutes. Sanjay Darji is representing Democratic Azad Party. He's also there. And welcome, Sanjay ji. The floor is yours, please. थैंक यू सर। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूं और ये जो स्टेप आप लोगों ने उठाया मुझे लग रहा है ये बहुत 34 साल हो गए, ये थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं 2016 से जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, 2016 से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, तो मैं बार बार सभी से कह रहा हूं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन है चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है, सबसे पहले हम कश्मीरी पंडित हैं। चाहे आप कहीं भी रहते हो, चाहे अब्रॉड रहता है कोई, चाहे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में रहता है, लेकिन सबसे पहले हम कश्मीरी पंडित हैं क्योंकि कश्मीरी पंडित जो है वो 34 साल से अपने ही देश में, अपने ही स्टेट में एक शरणार्थी बैठा है। 2016 से मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, मेरा मोटिव यही था। 2018-19 में मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट अनंतनाग से, मेरा मोटिव यही रहा। और मैंने तब से 4 पार्टीज रिजाइन की है। रीजन मेरी बात ध्यान से थोड़ा सुनिए सभी, आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपसे छोटा हूं। मैंने 4 पार्टीज रिजाइन की। रीजन था कि हमारे को कश्मीरी पंडित को पॉलिटिकल पार्टी जो भी है वो दबाती है, जो मेरा तजुर्बा है। मैंने 4 पार्टीज रिजाइन की। रीजन यही हुआ कि वो कश्मीरी पंडित को दबा लेते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। लेकिन उसके बाद फिर मैंने लास्टली बहुत सोच समझ के आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया। जब उन्होंने हमारे से सलाह मशवरा किया, जब हमने अपनी गाथा उनको बोली, उसके बाद फिर हमने आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन किया। और जो हमें लग रहा है, हमें उनसे एक आशा है, एक किरण नजर आ रही है कि ये जो हमारी जो माइग्रेशन है, हो सकता है कुछ होगा अगर वो पावर में आए। अभी मैं नहीं आपको दावे से कह रहा हूं कि वो आएंगे, लेकिन आशा है, किरण है। हमारी एक ही प्रॉब्लम है, हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी हो या हमारी जो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है काम सही सारे कर रहे हैं, मैं किसी का टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम कश्मीरी पंडित हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी डिस्प्लेसर, खासकर मैं डिस्प्लेसर की बात कर रहा हूं, जो जहां पे जिस ओहदे पे बैठा है डिस्प्लेसर, खासकर चाहे वो एनसी में बैठा है, कांग्रेस में बैठा है, व्हाट आर दे डूइंग, क्या कर रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए? उन्होंने इन 34 सालों में कश्मीरी पंडित की बात कहां पहुंचाई? इवन प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, एक एम फॉर्म है जिसको आज तक एबॉलिश नहीं हो रहा है। कहां हैं हम? इसमें सोचने का विचार करना है सभी को। मैं मालदार साहब को ये अप्रिशिएशन स्टेप उन्होंने उठाया कि एक उन्होंने अगर ये प्रोग्राम आज रखा जूम मीटिंग में, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर, ये ऐसी हम मीटिंग करते आते हैं, मैंने भी बड़ी मीटिंगें की है, मैंने बहुत जगह बातें भी की, लेकिन जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे, चाहे वो अब्रॉड में बैठे हैं, जब तक वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक जो दिल्ली में बैठे हैं, जहां जिस शहर में बैठे हैं, हमारे जो अच्छे लोग भी हैं, जैसे आप हमारे यहाँ इसमें सजवाल जी है, सजवाल जी से मेरी एक बार बात हुई है, इज ए वेरी नाइस पर, उसने वो बहुत ही अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, बातें करना आसान है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज आज तक करके आ रही है, वो बातें बहुत की उन्होंने, लेकिन वो अपना मफाद ढूंढ रहे हैं। लेकिन संजय दत्त जो है वो अपनी कम्युनिटी के लिए खून का कतरा देगा जब तक जिंदा हो।
ये मेरे से आपसे वादा है, क्योंकि मैंने देखा यहां पर हिंदू को दबाया जाता है, खासकर पॉलिटिकल पार्टी जो है। इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डिस्कशन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन चीजों को इंप्लीमेंट करना, 34 साल हमारे बच्चे दर-बदर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज, नौकरियां कितनी है सर? वही 6000, उससे कोई बड़ा नहीं आगे। क्वार्टर्स, वही दुर्दशा, अभी पूरे कम वो बने नहीं है, बेचारे दर-बदर है। अच्छा, जो बने भी है, ग्राउंड सिचुएशन में जो बने हुए, वो भी अभी ऐसे ही है, दुश्वारियां बहुत है। मैं ग्राउंड सिचुएशन देख रहा हूं हर जगह। क्वार्टर्स, चाहे जगटी है, मैं खुद टेनेंट बैठा हूं जगटी में, मैं जगटी से बिलोंग करता हूं, मैंने कैंप लाइफ देखी है। बातें करना बहुत आसान है, जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं वहां से बात करना, फेसबुक पे कमेंट करना आसान है, लेकिन जो कैंप से लाइव जी रहा है उसको ग्राउंड सिचुएशन पता है कि हमारे साथ क्या बीत रहा है, हमारे साथ क्या बीत गया, हमारे बच्चों के साथ क्या बीत गया। इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, पूरे जहां भी जितने भी विद्वान लोग हैं, हमारे बड़े हैं, मेरे से भी बड़े, और खासकर पॉलिटिकल लीडर्स से, जो खासकर डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी पार्टी से हो, पहले आप कश्मीरी पंडित हो, आप सबसे पहले अपनी बात रिहैबिलिटेशन की बात करो, क्योंकि मेरा फोकस है रिहैबिलिटेशन। मैं बार बार बोलता हूं रिहैबिलिटेशन, मैंने हर बार बोला रिहैबिलिटेशन के लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन अगर आप ये जो आपने जो ये मीटिंग बुलाई है, अगर आपको कुछ करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बातें ही नहीं होनी चाहिए, इनको अमल में लाओ। यही मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बाकी भी फ्रेंड्स है मेरे, इसलिए मेरी, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोला होगा उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूं। नमस्कार। Thank you, Sanjay ji. Can we now have Mr. R.K. Pardesi ji? Pardesi ji, you will have to unmute yourself. हेलो, हाँ जी, हाँ नमस्कार मारे, नमस्कार। sir. क्योंकि मेरे को रोज क्या जितने मिनट नोटरी को मैं ज्वाइन सतेज जी चुज में बड़े मुबारकबाद देवन कि इमन वो यस यमो आलम तुझमस छ काशर बटसन खातर रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो उन्होंने ये आलम उठाई है वो मुबारक के पात्र है। नंबर्स ये इनकॉर्पोरेट करन यम लोकल पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स वो उनके मैनिफेस्टो में हमेशा होता ही रहता है, मगर चूंकि ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुदाखलत बहुत होती है। हमारी जो जो भी कोई प्रॉब्लम है, चाहे रिहेबिलिटेशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, या जो ओवर एज्ड यूथ उनको सेटलमेंट करने की बात हो, इस सब का कल्मिनेशन होता है किसी न किसी तरीके से फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है मामला। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर सीरियसली देखना पड़ेगा। जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा, जो भी कोई पार्टी रही हो, हमारी बात को उठाते रहते हैं। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हालांकि ये एक बहुत बड़ा एक छोटा पॉइंट है, मगर जब हम उसके अंदर जाते हैं है ये बहुत बड़ा पॉइंट। पॉइंट ये है कि अभी एनहेंसमेंट ऑफ जो ये लेते हैं ना, ये कैश रिलीफ रिलीफ मारा ये माइग्रेंट मिलान पिछले 4-5 सालों से, मैं तो ये कह सकता हूँ पिछले 2014 से, जबकि बिग चंक ऑफ कश्मीरी पंडित इसी रिलीफ पर ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर मैं जगती की बात करूं, कभी कभी रोना भी आता है। दे आर पार्ट ऑफ दिस अवर कश्मीरी पंडित, जो हमारा ये सोसाइटी है।
तो जब तक हम इन छोटे छोटे मसलों को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि हमारी जो भी कोई हम किसी मुद्दे पर भी जितना भी हम कोशिश करें, वो नाकामी रहेगी। ये वारिया के हालांकि आई बेग पार्डन फॉर दैट, वारिया तिथ कह कि यम ज्यादातर मंदिरन हज कत कर, रेनोवेशन ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। मे बासान अकिस बटस सारे खुद बोड़ मंदिर वो अपनी फैमिली से स्टार्ट होता है। फैमिली खुश है, जब मंदिर जाने वाला ही नहीं रहेगा, ऐसे गैसे प्रायोरिटी गोड़ यम 3 जनरेशन, इन 14 वरियन मज 3 जनरेशन तो हमारी खत्म हुई है। अब चौथी, अब हमारी बारी आ रही है और हमारे बच्चों की। अभी भी हम स्टिक है उन्हीं मामलों पर जो असली मुद्दे हैं हमारे, जिन मुद्दों से हम डिविएट हो रहे हैं। असली मुद्दों को एड्रेस करने की अशद जरूरत है। और नंबर 3 सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा यहाँ है, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनक्लिनेशन है उस पार्टी के साथ जो काबिज है इस वक्त पिछले 5-10 सालों से, उनको भी खुल के बाहर आना चाहिए। जहां उनको लूप होल लगेंगे, जहां उनको लगेंगे कि कम्युनिटी के मसलों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, मगर बदकिस्मती से वो चुप करके बैठते हैं। पॉलिटिकल एफिलिएशन की आप वो बात आप छोड़ दीजिए। मैं वो नहीं तो संजय जी ने असल का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर ऑल कश्मीरी पंडित्स। मैं जो बात युद्ध कुछ, हालांकि यहाँ क्रिटिसिज्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक जो भी कोई संस्था हो अपनी तरफ से कुछ न कुछ तो कंट्रीब्यूट करती ही रहती है। तो अब कितना हम लेग पुलिंग करें, ये भी अब अच्छा भी नहीं लगता है। कशुर बटो शुमान इवन 3-4 चीजों से जो आज तक जो उसकी साख थी कश्मीर में। हालांकि वन कैसन जो एक सेक्ट ऐसा भी है जहां अभी भी कश्मीरी पंडित को ट्रीट करते हैं कि नंबर आपको पोर्मुत जोकमुत लॉयल, लॉयल्टी, पढ़ा लिखा एंड मतलब 2-3 चीजें इसके क्रेडिट में जाते थे जो अभी भी थोड़ा बहुत वहां है। एसू जो पेज फंस रहा है, नो सच तो प्रोफेसर साहब अके जाए मीटिंग दुबन ए पर्दी सब कशीर आसन अच्छा साड़न तत कह मे गई माशी ऐसा साड़न कर ये डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर लेक्चरर आज महाराज बरमार तत चीजन, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, डॉक्टर्स है, KS ऑफिसर्स है। मिस बुझे पन्ने गांव मिसाल, ये मैं तो तब जब हम वहां से निकले, दैट वाज अ स्मॉल हैमलेट। आज हमारा चलता थी 4 KS ऑफिसर्स, 10-15 डॉक्टर्स, MPhil PhD कम कहन। जो विडम्बना है हमारी कम्युनिटी में, जो प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, हम रियल चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। वन सही उदाहरण कि प्री-90 में यम तत हालात तक मुसलमान सह तुथु युत सो बटस नश चिट लेखन, मगर आज वो हालात नहीं है। वो पन्नस पानस मज वनकन बहुत सारी चेंजेस अगर पज पे वाकई हम चाहते हैं कि जो हमारा बसेरा वहां था, जो जहां हम रहते थे, हम वापस वहां जाए। हमें एडजस्ट करने की वो क्षमता डेवलप करनी चाहिए पड़ेगी, तब तक नहीं होगा ये। और नंबर 4 मिचुबासन वी आर ग्रोअपिंग इन द मड। अभी भी हमें पता नहीं है हमें चाहिए क्या। वन ब्याक मिचुबासन सत्य जी जो आपने ये कलम उठाई है, आप कुछ पॉइंट्स बनाए ना। मैंने आप लास्ट टाइम भी मेरे आपसे बात हुई थी,
कोई कंक्रीट प्रोग्राम लेके, अगर ऐसे पगा रिहैबिलिटेशन ऐसा ही नहीं रहेगा। हर एक चीज का अंत है, चाहे मुसीबत उसका भी अंत है, चाहे खुशी है उसका भी अंत है। एक ना एक दिन तो ये माइग्रेशन खत्म होनी ही है। इसके पीछे भी कुछ कारण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ मजबूरियां हैं, वो भी कहीं पर आंसरेबल है। अगर उनने ड्रीम्स बड़े बड़े पाल के रखे हैं, उनको भी यूएन में कहीं ना कहीं जगह पर ये सुनना पड़ता है कि जो आपके शरणार्थी 3-4 लाख 5 लाख कश्मीरी पंडितों से आप अभी तक उनको रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए, तो उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अब हम उस मोड़ पर आए हैं कि हाँ, अगर पगा ये कत गि सन ये रिहेबिलिटेशन कत मॉडलिटीज क्या गसन आस, वो हमने आज तक कभी फिक्स की है? कत शर्त शुरूतन पर गसो इस वापस कुछ नहीं कहा। कत वन ब्या कत वन ब्या कत वन। नंबर 5, ठीक है, चुना दपान सो अगर तुम पन या सा ये फ्यूचर बेटर देखना चाहते हो पास्ट से, स्टडी पास्ट, ठीक है, स्टडी करो, मगर स्टिक एक उस चीज को एक वेपन की तौर पर इस्तेमाल भी नहीं करना नहीं है ना। ठीक है, 90 में हमारे साथ गलत हुआ है, कौन उसको डिसएग्री करेगा इस चीज के साथ? हुआ है, बहुत सारी मुसीबतें हमें झेलनी पड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो कैंपों में लोग रह रहे हैं, कुछ सांपों से सांप डसने से मरे हैं, कुछ ड्यू टू इनसॉल्युबल वेदर कंडीशंस उस चीज से मरे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें आगे बढ़ना है, हमें उसी पॉइंट पर हमारे में भी है एक बहुत बड़ा एक सेक्ट हम में ही है जो उसी चीज को वेपनाइज करके बार 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 इस पंडित के हमारी इस कम्युनिटी को वही याद दिला रहा है, 90 90 90 90 90। अब बहुत हो गया है। तो मेरा बस यही मानना है कि हमें एक बार कोई जो फैसला होगा कि अगर कल हम वापस जा रहे हैं, हमारी मॉडलिटीज क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चीज हम रखेंगे कि ताकि हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर रहे, और जो हम लोग हैं हमारा मुस्तकबिल सिक्योर रहे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Praditi ji. So, thank you, Mona. Let's go forward and request Mr. Sanjay Saraf now. Yes, he's traveling. We'll probably even lose him. I think let's hear him. Sanjay Saraf ji. इन दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। नेता होता शायद क्या कि या फिर मुझे उंगली ने बुलाया, लेकिन पत्रकार अपने संजय सराफ जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। के दौरान देश की राजनीति देखी है, बंगाल की बंगाल दिखा महाराज क्या चला कुछ चल रहा है आपके यहाँ? हाँ जी महाराज, नमस्कार जी, प्लीज कैरी ऑन। आवाज आ रही है? नमस्कार महाराज, आ रही। चलो, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सतीश जी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छी बात है। इट इज नीड ऑफ द और उसके साथ में मैं हर एक कश्मीरी पंडित को मुबारकबाद देता हूँ। हर एक अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। हम लोग ने बहुत क्रिटिसिज्म किया आपस में एक दूसरे को। आई थिंक वी शुड लीव दिस ऑल नाउ। जो भी कहीं पर खड़ा है, जो भी यहाँ पर भी बैठा है, इसको देख भी रहा है, वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन। अपना टाइम दे रहे हैं, कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, और हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हर एक इसको निभा भी रहा है। अब मैं सर एक दो पॉइंट्स से मेरे पास जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग सर्वे करें अपनी कम्युनिटी में। ये मैं सतीश जी को आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में हम लोग सर्वे क्यों ना करें कि कितने लोग वापस जाना चाहते हैं।
हमारा ये एक ही बार ये वर्कआउट हो जाएगा कि इसकी नफर से गसन खतर तैयार वुचन कुछ पोलिटिकल पार्टी कुछ अफकोर्स बट तथ न सर्टिफिकेट जरूरत न सेकंड थॉट जरूरत प्राउड कश्मीरी पंडित्स और जितना स्ट्रगल हम लोगों ने किया स्ट्रगल से हम बाहर भी आए एस्टेब्लिश भी हो गए कुछ जगह ब्लेसिंग एंड डिसगाइज भी हो गई कहीं पर बहुत आगे भी बढ़ गए बहुत हमारे साथी इन पर्टिकुलर हमारा जगती कैंप मुठी में कुछ कैंप्स जिस तरीके से बहुत हमारे साथी बेचारे डिपेंडेंट है रिलीफ पर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला बट उसके बावजूद वो साथ में खड़े हैं पूरी कम्युनिटी साथ में खड़ी है बट ठीक है प्रैक्टिकल शेप में 2-3 पॉइंट से एक पॉइंट है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमें अभी तक नहीं मिली है नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नाफर हमें जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगी हमारा रिटर्न रिहैबिलिटेशन जो मेरे को लगता है नहीं होगा हमारे 2 सीटों की जहां पर बात है बहुत अच्छी बात है 2 सीटें थी बहुत बहुत बधाई हो बट उन 2 सीटों के साथ है डिलिमिटेशन टाइम हम लोगों ने मैंने भी लिखा था उस वक्त डिलिमिटेशन कमेटी को कि हमें रिजर्व कर दीजिए 2 सीट्स रिजर्वेशन से हमारा कैसे चीज जब 2 रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाती उससे क्या होता हर एक पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग एक्सेप्टेबल हो जाते हर एक पॉलिटिकल पार्टी की नजर रहती उस कश्मीरी पंडित को हाथ डालो चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल लोकल पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की हो या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो और कहीं पर भी जो भी जीत के आता वो कश्मीरी पंडित जीत के आता उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो हमें वो एम्पावरमेंट हमारे को नहीं मिला मेरे को लगता है अभी भी हम उस पर काम कर सकते हैं क्योंकि इलेक्शन अभी भी 27-28 से पहले नहीं कर रहे हैं असेंबली व्हाट आई पर्सनली फील एज ऑन डेट अभी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वो अभी इलेक्शन करे और करना भी नहीं चाहिए बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है इसी तरीके से कुछ हद तक वो ठीक चले जब तक पूरा माइंड सेट वहां साफ नहीं होता है और काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब और उस तरीके से तो मेरे को लगता है हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पर बात करनी चाहिए मैं सतीश जी को भी बोलना चाहता हूँ एक ड्राफ्ट प्रॉपर तैयार करें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को पीएम को लिखे जेपी नड्डा जी को लिखे उस पर एक सेकंड थॉट प्रोसेस फिर से एक बार क्रिएट की जाए क्योंकि डिलिमिटेशन कमेटी में फिर से काम हो रहा है और काम होने की संभावनाएं है जब तक हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिले हमारा दुश्मन वहां कश्मीरी मुस्लिम नहीं है मैं खुलकर बोल रहा हूँ हमारा दुश्मन अगर है उसी कश्मीरी मुस्लिम की पॉलिटिकल पार्टी है वहां का नेता है उस पार्टी का और जब वही नेता कल को अपनी टीम को बोलेगा यार बाटासाचु करो एक्सेप्ट बाटासाचु वेलकम उसी से हमारा रिटर्न हो जाएगा व्हाट आई पर्सनली फील क्योंकि मैं ज्यादा टाइम श्रीनगर में रहता हूँ ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इस पर बड़ा रिसर्च भी किया और मेरे को लगा भी ये एक सोल्यूशन है जिससे हम लोगों का रिटर्न एक्सेप्टेबल कश्मीर में भी होगा और कश्मीर की एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए हो जाएगी हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी को लगेगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इलेक्शन जीते दैट डजंट मैटर बट मेन चीज है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी ग्राउंड जीरो पर होगी हर एक कश्मीरी मुस्लिम भाई भी हमारा समर्थन सपोर्ट करेगा नहीं यार एक कश्मीरी पंडित आ जाएगा मैं तो चाहता था मैंने लिखा था उस वक्त एक सरदार को भी रखो हमने कहा एक माइनॉरिटी का ग्रुप खड़ा हो जाएगा 2 कश्मीरी पंडितों को डिलिमिटेशन कमेटी में मैंने लिखा था अगर आप चाहे तो मैं वो ड्राफ्ट भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ जो हम लोगों ने उस वक्त लिखा था क्वेश्चन बटन खतर आख कश्मीर मुस्लिम खतर ये सॉरी आख सरदारस खतर आख के 3 सीट एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है बाकी जो उन्होंने 2 सीटें दी है दैट इज ओके हम किसी चीज को अपोज नहीं कर रहे नंबर 2 नंबर 3 अब हमें गवर्नमेंट से ही पूछना है कि उनको उनके पास हमारे लिए क्या है हम हर वक्त अगर बोलते हैं हम ये लिख के देंगे वो बना के देंगे हम अपना ड्राफ्ट तैयार करें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करें बट उसके साथ में हमें गवर्नमेंट को बोलना है हमारे लिए क्या है आप कश्मीर में 10,000 क्या 10,00,000 दे दो हमें कोई चिंता नहीं है ना कोई हमें टेंशन है बट मेरे लिए अगर 1 रुपए है तो वो 1 रुपए मेरे लिए रखो क्योंकि 14,000 13,000 शायद आज रिलीफ है वो 13,000 अभी भी वही 13,000 है 2014 से पहले है ठीक है वी आर ब्लेसेड भाई ऑलमाइटी हम लोगों को जरूरत नहीं है लेकिन हमारी मैक्सिमम कम्युनिटी के जो लोग जगती में है या हमारे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ चल रही है उसके साथ जिनके बच्चे पढ़ते हैं उससे जिनके घर में वो बेचारे किराए भी देते हैं घर भी चलाते हैं और साइड में कोई रोजगार भी नहीं है जम्मू में उनको दिल्ली में भी बहुत ऐसे साथी है तो हमें लगता है उनके बारे में हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में सोचना भी बात भी करना और इन बातों को आगे बढ़ाना हमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को लिखना चाहिए उनके पावर्स में है
आई थिंक जब उनको ये समझ आ जाएगी तो दे कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस, रिलीफ बढ़ेगा उन सब भाइयों का। तो मेरे को लगता है उसमें सपोर्ट समर्थन मिल जाएगा कम्युनिटी को। तो यही 2-3 पॉइंट से हमारा। दूसरा चीज है जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ से, उसके लिए तो जो भी एम्प्लॉयमेंट पैकेजेस है, जब एक बार जाने की बात होगी, ये सब चीज तो हम यहाँ पर भी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे जब रिटर्न रिहेबिलिटेशन होगा तभी मेरा जो वहां पर बिजनेसमैन था, गांव वाला विलेजर था, जिस जो फार्मर था, जिसकी लैंड। संजय जी आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट हो गया। संजय सराफ जी अनम्यूट कीजिए। संजय सराफ जी आपका म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। मेरा अनम्यूट ही है। नहीं नहीं unmute। सतीश जी डेली बैठता हूँ हर चैनल पर, मेरा अनम्यूट ही रहता है। एनीवे, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि हम लोगों को एक, आप लोगों के माध्यम से अगर ये प्रोसेस स्टार्ट की, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो भी हमारा बनेगा, कुछ पॉइंट्स हमारे 5-7 बनेंगे, उस पर कंसेंसस ले लिए। और सबसे जो एक अच्छी बात है कि जिस सिग्नेचर कैंपेन हमारा करे ना स्टार्ट, कशीर मस्द होती है इस तरह भी सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट, जिससे हम लोग वो प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं कि भाई हम इतने लोग तैयार हैं। अगर आज बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ऑल ओवर इंडिया के लोग, कश्मीर से कश्मीर तो कश्मीर में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में जितने लोग हैं वो सब आ रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है हमारा, अभी मेरे को लगता है मई जून में ट्रेन आ जाएगी। जब ट्रेन आ जाएगी, ट्रेन में 3 करोड़ 4 करोड़ लोग आएंगे। 4 करोड़ लोग को मिनिमम आप खर्चा करिए सर, एक आदमी वहां पर 20,000 रुपये खर्च, जो एक मिनट होता है, वो हमारा 4 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20,000, दैट गोज मोर देन 80,000 करोड़ रुपीज। वहां इतनी बड़ी इकोनॉमी आएगी, तो नेचुरली वो कहाँ किसको देखेंगे। इसलिए हमारा, हमें लगता है कि हमें भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को भी सबको मिल बांट कर, हमारे अपने इश्यूज हो सकते हैं, क्या इश्यूज है प्रेसिडेंट, क्या इश्यूज है जनरल सेक्रेटरी, क्या इश्यूज है सेक्रेटरी, वो ठीक है, अच्छी बात है। हर एक को मुबारकबाद देता हूँ, हर एक बन जाए अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं किसी को ये गिला शिकवा भी नहीं करता हूँ। विद पांच अगर इस 10 ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन 15 ऑर्गेनाइजेशन, हार्डली मैटर्स। बट वो 15,000 के 15,000 प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी अगर एक बार साथ में खड़े हो जाएंगे तो 30,000 लोग हो जाएंगे। जहां कहीं भी हमारा प्रोग्राम होगा 30,000 लोग खड़े हो जाएंगे। अगर 1,500 ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, 1,500 के प्रेसिडेंट, 1,500 के जनरल सेक्रेटरीज, बाकी बॉडी त्रय तो तुम्हारा गए तो 3 नफर है कुंत जाए खड़ा गए, जो कहीं पर भी दिखेगा कि नहीं कश्मीरी पंडित 3,000 एक साथ खड़े हो गए। तो इसलिए मेरा सबसे सबमिशन है, अपने व्यूज थॉट्स को खुलकर रखे और हम लोग खुले दिल से, खुले दिमाग से सोचे, बहुत हो गया। और 90 को हम नहीं भूल सकते सर, 90 हमारी बेस है, 90 से ही हम लोग निकले और 90 के बेस पर ही आज हम सब लोग बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं, अभी हमारे भाई परदेसी जी कह रहे थे कि 90 का ढोल बजाना जरूरी है परदेसी भाई। और संजय जी को भी बोलूंगा, हमें खून के कतरे नहीं देने हैं सर। खून क्यों देंगे, हमने बहुत खून दिया, हमारे कम्युनिटी ने बहुत खून दिया है, जगती में भी दिया है, मिश्री वाला कैंपू में भी दिया है, पुरखू में भी दिया है, मुट्ठी में भी दिया है, गर्मी में, धूप में। हमें खून देने की जरूरत ही है ना, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचारे को जरूरत है खून की। वो चाहता है कि हम लोग कोई अच्छा सा प्रपोजल दे और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही मांगे कि आपके पास हमारे लिए क्या है। हमारे प्रपोजल हो सकते हैं, हम लोग तो मांगेंगे इस दिशा आसमान, बट वो आसमान लेने लायक तो हम हो। अब हम उन्हीं को छोड़ेंगे। पॉइंट हमारा लीक तो ये थी कि भाई आप ही बताइए सर, आपको हमारे लिए क्या है। आप उनको जो देना चाहते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जिसको जो मर्जी दो। बट मैंने खतर क्या चु मैं दी तो आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट। दिस इज द आई थिंक क्या वंकन मरा है। मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। सो आई जस्ट वांटेड, मैंने सतीश जी को बोला था, आई जस्ट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज वन कॉल अवे फॉर माई कम्युनिटी। और हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, बीइंग एन सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें करना है, करते भी रहेंगे आगे, जब तक है तब तक करते रहेंगे। एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जो भी कम्युनिटी जिस तरीके से भी रहे, वी आर ऑलवेज वन कॉल अवे फॉर एवरीवन। जगती हो, कश्मीर में पीएम पैकेज के बच्चे हो, मैंने पीएम पैकेज के बच्चों को भी अपना घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर दे रखा है उनको ऑफिस के लिए, कि तो ऑफिस यूटिलाइज बिकॉज दे डोंट हैव देयर ऑफिस। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑल आर वन। सारी कच्ची बात है, हम एक दूसरे के ही काम आएंगे, एक दूसरे के साथ ही खड़े हो जाएंगे और हमें एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल रहना है, कोशिश करनी है। जो भी बाकी परमात्मा करेगा वो सब ठीक कर रहा है।
Or honestly, I'm personally very happy enough that we have a wonderful Prime Minister, we have a Home Minister, we have a LG here. Those who can deliver at this stage. और कोई किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में ताकत नहीं है ये सब चीज डिलीवर करने की. We are grateful to, I'm personally grateful to Almighty कि we have a wonderful team at center level. But main चीज है उन तक बात पहुंचानी. जब मैंने भी डिस्कशन में होम मिनिस्ट्री में बात की, दे वर सरप्राइज्ड जब मैंने उनको ये खोल के बोला कि आपने जो 2 सीटें दी बहुत अच्छा किया, मैं किसी चीज को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को रिजर्वेशन चाहिए थी जिससे मेरी एक्सेप्टेबिलिटी, मेरी कम्युनिटी की एक्सेप्टेबिलिटी होती. कैज तुम करहान एक्सेप्ट, ते मैंने वोटर्स करहान एक्सेप्ट. आज मेरे वोट का कोई वैल्यू नहीं है, मिचुन वोट ही कुन जाए. आप एम फार्म की बात करें, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ सर, मेरा वोट है कहाँ? मेरे वोट की, मेरे को श्रीनगर में एक भी कंस्टिट्यूएंसी दिखाई है जिसमें मेरे वोट की वैल्यू है. इवन मैं पर्सनल अगर अपनी बात करूं, मैं हबकदल से लड़ता था, 80,000 वोट थे उसमें. शुरा सदा सा से बट सिंह वोट आसन लगता था कुछ, अगर 40,000 30,000 वोट पड़ेंगे 16,000. आज 16 के बदले वो 25,000 पहुंचे. लेकिन डिलिमिटेशन कमेटी में पूरा डाउन टाउन छजाबल मिला के उसका बन गया 1,85,000. तो अब कहाँ स्टैंड करेगा कश्मीरी पंडित वहां पर? पर्सनल हमारा वहां पर लोकल के साथ क्या रिलेशन है अगर हम उसको माइनस करें, तो इसलिए हम लोग उन सब चीजों को ना देखें. यही चीजें अगर यही 2-3 सीटें रिजर्वेशन में आ जाती तो इसमें किसी भी पार्टी का हो, चाहे मैं कहता हूँ चाहे पीडीपी का हो, एनसी का हो, कांग्रेस, किसी भी पार्टी का हो, या भाजपा तो है ही, या किसी भी हमारी किसी लोकल पार्टी का हो, कोई भी हो, लेकिन एक बट होता है, वो बट सीट निकल जाती और वो हर एक ट्रीट कर लेता ना ईच बट सीट. और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ वो पॉलिटिकल जो लीडर होता लोकल वहां पर, जो चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस, जो मेजर लॉट है वहां पर, या 1-2 है जो लोकल पार्टीज है, वो सब भी अपने लोगों को बोलते हैं ना, अमिस दिवु जगह या पार्टी करन मत या पार्टी अटैच सीट आखा नहीं ऐसा अतन सीट. तो हमारी क्रेडेंशियल्स बढ़ जाती, हमारी पॉलिटिकल क्रेडेंशियल क्रिएट होती थी वैली में, और उसी पॉलिटिकल क्रेडेंशियल से हमारी स्पेस क्रिएट होती. तो स्पेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और जो स्पेस तभी क्रिएट होगी जब मेजॉरिटी वहां पर एक्सेप्टेबिलिटी में आ जाएगी. बोलना एक बात होती है, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी जब तक मेरी नहीं होती, नंबर 1. नंबर 2, महाराज अगर मेरे पास ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, ये मैंने एक बार एक प्रोग्राम में दिल्ली में भी बोला था, हमारे को लगता है लोधी रोड में एक प्रोग्राम था, मैंने वहां भी खड़ा होके बोला था, अच्छे दिल मज बॉम्बी मज हेवन वी आर ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी द फ्लैट चोर फ्लैट फ्लैट या त्रेम पे हेवन ऐसे चूर का प्रॉब्लम. अगर कशीर मज है तो यार 2-3 मारल, 4-4-5 मारल, कम से कम हमारी स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती. हमें कोई ये नहीं बोलता कि एक्सी जायज के असर बयान 2 जैन के बयान 4 जैन. उस वक्त हम कम से कम सब मिल बांट कर, जैसे सतीश जी भी पिछली बार बहुत कोशिश कर रहे थे, काम कर रहे थे इस पर कि जमीन अगर हम लोग एक जगह ले ले, फिर हमें कोई ये नहीं बोल सकता था. हमारे भाई वहां के जो आए हैं वो बठिंडी में सब जगह रह रहे हैं, उनको कोई अपोज तो नहीं कर रहा है कि भाई आप एक ही जगह क्यों मांग रहे हो, वो तो एक ही जगह रह रहे हैं ना पिछले 20-30 साल से. तो हम लोग भी वैसे ही श्रीनगर में, अनंतनाग में, कहीं पर भी, बारामूला या कहीं भी किसी भी एरिया में अगर ले लेते, हमें कौन मना करता. बट हम लोग को भी आगे बढ़ना है सर, ये मेरा सबमिशन है सब पूरी कम्युनिटी से. बाकी आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, मेरे को बुलाया आप सब लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. माता रानी किरण सारनी ब्लेस. वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं भी पॉजिटिव रहूं, मैं भी हर वक्त खड़ा रहा हूँ. कम्युनिटी का हर एक सिपाही हमारा है, हर एक साथी हर वक्त खड़ा रहता है, और हमें इसी तरीके से कोशिश करनी है अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है. जितना जहां पर भी हमारी कहीं पर भी किसी भी कम्युनिटी मेंबर को कहीं पर भी सपोर्ट समर्थन की जरूरत है, वहां हमें साथ में खड़ा रहना है. उसको ये एहसास दिलाना है क्वेश्चन अपोज करन सारी से, और एक मैसेज देनी है, हर जगह मैसेज देने, पूरी कंट्री में, पूरे ग्लोबलाइज्ड ये मैसेज जानी चाहिए कि हम सब लोग एक है, हमारा एजेंडा एक है, हमारा थॉट एक है, हमारा थॉट प्रोसेस एक है, हमारा थिंक टैंक एक है, और हम जो बोलते हैं वो एक आवाज में बोलते हैं. थैंक यू, मेरा धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सतेश जी फॉर कॉलिंग मी, It's our pleasure. फॉर इनवाइटिंग मी. Okay, thank It's you. our pleasure that you had illuminated the floor with your wonderful thoughts. Before proceeding further, we have got a Rajesh Kolji, welcome, and of course, meantime, former MLC from National Conference. I think there's some connecting problem. Mr. Bushwal Bhatji was joined, and Umesh Talashi. I think Sunilji, we should proceed further. That we have got Daisy. I think we have Alok ji Alok ji, one second. who's been wanting to talk for quite some time.
Alokji, can you unmute yourself and talk and please be brief. आलोक जी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अगर आप अपना कैमरा भी ऑन करते तो थोड़ा दर्शन के सेहत हो। Mara, I'm not familiar with these spaces, and so इसलिए अब मैं पे setting watching phone it. But if you'll allow me to speak, नहीं please. Mara, first of all, let me introduce myself. I live in Dubai, so I'm not on the ground like all of you people are. But I'm a keen observer, community affairs, India affairs. I'm a retired person, and because of that, I think I have a fair deal of objectivity, which I often find missing in our community. Some points have been made. I would first of all like to address them. But listen carefully. Don't read anything more than what I say in what I'm saying. First of all, Sanjay ji spoke about Modi and Amit Shah. वो तो उनका जो है उनको प्रेज करना वगैरह is okay. But from the point of view of the Kashmiri Pandit community, Modi made a promise in his 214 election manifesto, return and I'm sure you're all aware of it, the details of it, what was mentioned, honor, dignity, वगैरह. And he failed to keep that promise. He repeated that promise in different words again. Zasas the Converse has not taken one single step towards addressing the critical concerns of the Kashmiri Pandit community. What are the critical concerns? Actual erasure of identity. Agar ithe can roiz chalan silsile in a generation or two, I think in one generation we'll be like the Nehrus and Saprus ki we can say ki aisa from hailing from Kashmir, magar Batagi aisne aismas ki. For that Batagi to be there is essential that, like we often quote the example of the Jews, that there is a mother lode in Kashmir Batanhun. Now, return and rehabilitation is in Vananch. I mean, it will be foolish of anybody to think a return on rehabilitation has such a 3 lakh to 4 lakh batagatsan vapas. It is not possible. Magar agar 5 sathi gatsan under the return and rehabilitation process to start with, saas gache, doimi very 5 saas gache, that is the start of reclaiming our place in Kashmir. Coming back to Modi and Amit Shah. Forget about Amit Shah, not important at all. Modi. I'm anti-Hindutva, I'm anti-BJP. And again, I'll reiterate, he made a promise. He did not keep that promise. But the fact is that Modi is the only one who can possibly deliver. I'm quite cognizant of that he's the only one who can take some steps, keep his promise, and arrange for something which will be covered by return and rehabilitation. Now, what is the return and rehabilitation? The onus is being put on the Kashmiri Pandit community to get together, have consensus, and then suggest to the government. That is absolutely the wrong way of going around it. There have been representations by scores and scores of Kashmiri Pandit parties, Akhwanan, Akhcheez, Byakwanan, Byakcheez, Byakwanan, Byakcheez, Modias Melan, America's Mans, Amit Shah's, Yetib, Sinha's Kunjai. This is not workable. You are following the wrong path. May I suggest the right path? It is not upon the Kashmiri Pandit community isn't that displaced guy. There are different kinds of displacements. Gaam Mazdrai, Shahar Mazdrai, Khopra Mazdrai, Alishan Makana Mazdrai, jobs Mazdrai, businesses Mazdrai. Isliye, you have to understand, and everybody has to understand, that the nature of requirement and demands will be varied. पता ये कहा कि अगर गवर्नमेंट के हिसाब का ही आप कानून बांटवाइन का भाई आप कंसेंसस करो नहीं हो सकता है कंसेंसस. You are following of. Am I being interrupted by somebody? Somebody's got the mic on, इसलिए mic याद है. अगर वो continue है करे, it shouldn't possibly get consensus up there.
such a nihayati bewkufi conversation samjun ki consensus sabde when the nature of displacement is different and the demands are different. I am anti-Panun Kashmir, but I have to recognize that that's a demand from a section of the society. There is a one-place settlement demand, three-place settlement demand, 10-place settlement demand. This is playing the song of Bharat Sarkar ki bhai aap panditton ko pata nahi hai. I've spoken to RSS people here in Dubai through common friends who have strong connection with RSS. Unki bhi yahi hai ki bhai aap panditton ko pata nahi hai. And I explained to him कि पंडितों को क्यों पता नहीं है, क्यों कंसेंसस नहीं है, क्योंकि the nature of displacement is different, the nature of demands is different. So what should be done? Here is my suggestion. If you are willing to follow it, you don't need consensus of demands to start with. You just need the organization and get together, present a united front. We are to some extent representative of the voices of Kashmiri Pandits. I'm busy, huh? You have to, that we are representative of Kashmiri Pandits. That must varied opinions that must. Aki demand chikaring to start with. We don't want any Amit Shah. We don't want any nonsense of Sinha, etc. We want the PMO to to open a cell. Button in Khatri, that's not possible. A migrant cell. This migrant cell has to be dedicated to Kashmir, to the migrants. Not answerable to anybody else other than the PMO and whoever Modi can designate as looking after the affairs. That's his problem, not ours. This migrant cell has to interact with every possible Kashmiri Pandit organization. Keep an open invitation for people to approach them, present their demands. They have to move around the country and meet different organizations, 4 nafar asan, 5 nafar asan, to find out what are the varied demands. Then they have to sit on it, the PMO office, migrant cell, and decide ki what is possible, what is not possible. Banancha Panun Kashmir Violent Violent ke het, I think Union Territory already che, free and flow of constitution chu, to kya chhuai manan. And so on and so forth. By 10 settlement nahi possible hai, ya 3 settlement, 3-pay settlement, whatever the government feels, because I'm trying to impress upon you, do not be on the defensive ke hai ashun consensus, ashun pata kya chukarun, is kya karo, ashun yourself get together. Nah. Put the onus on the government, because the government, it is a responsibility, and the government is in continuity. It does not matter whether it is Congress, BJP, Mamata Banerjee. Government is an entity by itself. The onus is on the government of India to address what happened with the Kashmiri Pandit displacement. A disaster, a socio-religious, economic disaster. भाई I would appreciate it अगर लोग अपना म्यूट करते, या तो मुझे बोलो कि चुप हो जाओ भाई. That a unique socio-cultural religious identity is even amongst Hindus. मतलब आप गिर के लाइन के लिए, लाइन्स तमाम दुनिया के थोड़ी खत्म हुए, लेकिन गिर लाइन के लिए आप स्पेशल कंजर्वेशन करते हो कि भाई एक यूनिक स्पीशीज है. ऑलिवर रिडली टाइटल के लिए टर्टल्स थोड़ी खत्म हुए, लेकिन भाई ऑलिवर रिडली टाइटल है, कहीं पे कोई हांगुल है, कहीं पे कोई परिंदा है. And why the hell are you not realizing that a unique human subsection of India, which has a unique identity, socio-cultural, religious identity, even religious, quite different from very many of the other Hindu sects, that इनको conservate करना है, इनके जो है, they should not bet if they are interested, if they are sincere. Right now, the Modi government has shown no sincerity. कि 2014 हमें तो यूज किया इलेक्शन हियरिंग में कि पंडितों को ये भाई हिंदूज को ऐसा हुआ वैसा हुआ, और but they have not taken a single step. So मेरी request यही है, get together without trying to find a consensus of demands. Get together and approach the Prime Minister's office. Tell him that this is the only way. You have to have a special cell for migrants, and then you have to talk to all the different demands emanating from the community.
You have to move around the country to talk to different, and it is a process of just about 6 months if they do it sincerely and they do it with interest. Zat ko sath tracht pain agar timan waqt ay zaya karun very kadan, but at least there will be movement because the government of India, it's their responsibility to deliver, and they're the only one who can deliver. But ye sideline ke Musliman can accept as, what do we have to do with the Muslim? We have to think about our demand. Yelzan battataite ah gaiche, the gaiche, PM package employee gaiche. Ichu bewkufi ki hai nasa pachi se Musliman sitan katba. It is automatic. You cannot live in isolation there. Haftasman sat donaite she doche Musliman sitan ni interact karun. चाहे वो स्कूल टीचर आस प्रोफेसर आस डॉक्टर आस या सब्जी वलिस निशन चुम गसुन या गार्ड चम हेन या केन चुम करुन. So let us not deviate, let us not different ki na manchu Musliman issue to as anun. Again, sorry I'm repeating myself. Don't dissipate your thoughts and your energies. Don't get involved in unnecessary, impractical things. Only the government of India can deliver. They have not delivered. Modi has made a promise which he has not kept. Impress upon the PM, whichever way you can, that us as a representative of Kashmiri voices, not with a consensus of demands, but as representative body of people, that we want you to open a PM cell, especially for migrants, and then take it forward from there. Thank you very much for giving me the time. I appreciate it. Thank you very much. Hello, well said. So, Devi, can we move forward? We have got, we should welcome BL Bhattji, former NLC leader, JNKC, National Conference. And can we just you can move on Daisy Ranaji, and then from there we can hear Mr. Bhatt sir. Ms. Daisy Rana. Ms. Daisy Rana, can you unmute, please? Daisy ji, you will have to unmute. Daisy ji, आप unmute कीजिए, please. आपकी आवाज नहीं आ रही, आप unmute कीजिए. Daisy Rana ji, आप unmute करें, please. Satish ji, I don't think she is listening. If she is not able to understand or hear, probably if the admin can try and see if we can unmute her. Okay, I think she is there. I am not able to unmute her. Let me try to unmute her. Daisy ji, you will have to unmute yourself. आप म्यूट में हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए. जो स्पीकर का आइकन है उसको क्लिक कीजिए, अनम्यूट कीजिए. स्पीकर का डेजी जी, जो स्पीकर का आइकन है वहां पर दिख रहा है आपको. She says she is sending a message. She says, I know. I think she has got a technical glitch. Till then, But can I we am hear also Mr. not able to unmute her. डेजी जी ने मैसेज भेजा है that she is unable to unmute. नहीं हो रहा है unmute उनका माइक उनसे. technical. So I think let's move forward. Daisy ji, can you drop off and rejoin? अगर आप unmute नहीं कर पा रहे हो तो. You will also unmute her. I'm not able to unmute her.
उनको अपने से ही अनम्यूट करना पड़ेगा, म्यूट ऑप्शन पे वाईफाई पे क्लिक करके। वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे माइक पे, उनको वाईफाई पे क्लिक करना है। So Satyajit, till she rejoins us, I think it Yes, makes we sense have for got Desi to drop and rejoin. So right. till she So till then rejoins, we have Mr. continue. Till then we have got Ms. B.L. Batsab. Batsab, kindly unmute and illuminate us the floor, please. Namaskar. I'm very happy that आपने आज काफी लोगों को बुलाया है और जो हमारे बहुत से साथी है जो इस फिक्र में है कि आखिर व्हाट अबाउट आवर फ्यूचर, इसके लिए अब हमें सीरियस रहना पड़ेगा और उन तमाम लोगों को जो जो लाइक माइंडेड हो, जो अपने वतन जाना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करके और एक रास्ता निकालना पड़ेगा। काफी हद तक हालात में सुधार है और जहां तक ये 5,000 लोग जो वहां काम करते हैं वो गांव में जाते हैं, नौकरी करते हैं और वो दूध लाते हैं गांव से सुबह सवेरे। बेसू में देखो, श्रीनगर में देखो, काफी हद तक हालात है। लेकिन अब हमारा है कि हम कैसे जाए, हमारे लिए क्या इंतजाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। सब लोग बोलते हैं कि आपके बगैर कश्मीर अधूरा है, ये सब बोलते हैं, ना प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ। मेरी सरकार ने, मेरी जमात ने भी काफी कोशिश की थी। जब हमने इस किस्म की कोशिश की तो उस वक्त सबटाइज हुआ, चाहे पाक ट्रेंड मिलिटेंट से, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, काफी लॉबीज काम करती थी। और हमें उम्मीद है कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया है कि हमें आपको अपने घरों को ले जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि 50,000 60,000 फैमिली जाएंगे, 2,000 4,000 फैमिलीज, 10,000 फैमिलीज तो कम से कम जा सकते हैं। तो जहां तक अभी आप मेरे से पहले जो साथी बोल रहा था, मैं उसके विचार से सहमत हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले एपेक्स कमेटियां होती थी यहाँ स्टेट में, वो मशवरा देते थे कहाँ पैसा खर्च करना, क्या करना, किस तरह करना। हालांकि उसमें ये भी डिस्कस हुआ था कि रिटर्न के लिए हम ये पैकेज देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट्री एक डेलीगेशन भेजा और उसमें सब ने एक ही बात की थी। ये लोग कहते हैं कि तो जो अलग अलग बात कराना, आप अलग अलग हो, ऐसी बात नहीं। हर एक पंडित जमात ने, चाहे वो पॉलिटिकल था, सोशल था या कुछ था, इकट्ठे हमने यहाँ की जम्मू गेस्ट हाउस में पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपने विचार रखे। और उसके बाद पता नहीं उन्होंने भी फिर लिखा कि नहीं, ये जो सुषमा चौधरी का था वो भी ठीक था, कोल कमेटी का था वो भी ठीक था, वो भी ठीक था करते करते आज हम वो लोग जो अपने घरों को जाना चाहते थे, उनमें से काफी लोग, उनकी डेथ हो गई, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके दिलों में ये अरमान है कि वो अपने घर जाए। और ये अच्छा है, बैठेंगे कभी, सब लोगों को बुलाना। और लाइक माइंडेड कुछ लोग हैं जो सबटाइज करते हैं, कुछ लोग हैं जो जाना चाहते हैं, क्योंकि एक कश्मीरी पंडित ने इस माइग्रेशन में भी अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे, आना जाना भी रखा। यहाँ तक बहुत तकलीफें देखी है मेरी कम्युनिटी ने, उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां बैठे हैं। अभी संजय सराफ साहब घूमता है, चलता दाएं बाएं, और भी कुछ लोग हैं। तो इसमें यही ज्वाइंट मीटिंग हो, एक बार बैठे, जो उन्होंने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियस लेना चाहिए और स्टेट को भी सीरियस लेना चाहिए। जो मसला है ये इंसानी मसला है, ये कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसानी मसला है और इसको इंसानी बुनियादों पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ही हल करना चाहिए। ये भी ठीक है कि अभी कहते हैं वहां भी बात करनी चाहिए, वहां के लोगों से भी, कुछ जमातें जो है जो अपर ग्राउंड में है, उनको भी कहना चाहिए हमारा कसूर क्या है, व्हाट वाज आवर फॉल्ट। हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, हमारा फॉल्ट ये है कि हमने पढ़ाया लिखाया, हमारा फॉल्ट ये है हमने प्यार से, मोहब्बत से
उस वादी में जहाँ जिसे जो रेशियो और मिनियो की वादी थी, उसमें हमारे हमसाए मुल्क ने पाक स्पॉन्सर मिलिटेंट ने हमें परेशान किया। हमें ही नहीं, वहां के लोग भी आज महसूस करते हैं कि एक खुशहाल स्टेट को तबाह कर दिया गया। लिहाजा ये ठीक है कि अगर हम फिल्म मिलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप दिल से ये चाहते हैं, ये शुभ काम कर लीजिए, कोशिश कीजिए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जो उन्होंने कहा, अभी एक सेल कायम कीजिए या एक अपेक्स कमेटी बनाइए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करे, जो 10 आदमी की हो, 20 की हो, 30 आदमी की हो, जो अच्छे जो लाइक माइंडेड हो। जैसे मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे टाइम दिया, और थैंक यू वेरी मच। मैं आपका आभारी हूं। थैंक यू। Thank you, Bhatt Sahab. Nice words. Ban Sahab, Ashok Ban Sahab, kindly illuminate the floor, please. Ashok Ban Sahab. I think वो कोई busy है. Ban Sahab. Satiji is not responding. Oh, I think he's busy with something. Can we go with the Bharat Kachru ji? Bharat Kachru ji. नमस्कार साइरन मारा हमारा मैं बहुत वरिया वॉइस और मैं आज फिर से अपसेट हुआ हूँ क्योंकि जब भी हम कोई जूम मीटिंग बुलाते हैं तो उधर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी होते हैं, लेकिन ये पहला जूम मैं देख रहा हूँ जहां कश्मीरी पंडितों का एक भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट मुंबई। और ये बड़ी विडंबना की बात है। यहाँ कोई बोल रहा था हमें आपस में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हम भी सोच रहे हैं, हम भी चाहते हैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए आपस में, लेकिन आज मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों का जिनको सबको इनविटेशन गया था और उन्होंने प्रॉमिस किया था वी विल पार्टिसिपेट, इवन कुछ लोगों ने बोला था कि हम जम्मू भी ट्रैवल करेंगे, हम श्रीनगर भी ट्रैवल करेंगे अगर ये मीटिंग वहां रखेंगे। बट अभी ये पता चल रहा है कि हमारी कम्युनिटी का दुश्मन कौन है। आई एम सॉरी, आई विल बी वेरी ब्लंट टू स्पीक। कोई बोल रहा था हमें नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें मजबूर किया जाता है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे जो एक क्रिटिकल सिचुएशन कश्मीरी पंडित की है, काफी लोगों ने इस पे सोच समझ के, काफी दिनों से हम इस पे सोच रहे थे कि क्या होगा कश्मीरी पंडितों का, जिसका आलोक जी ने बहुत अच्छी तरह व्याख्यान किया कि 2014 में जो प्रॉमिस किया गया। मैं मानता हूं पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ हैं जो कनेक्टेड है पॉलिटिकल पार्टी से, उनकी एक अपनी मजबूरी है, उनकी एक अपना एक बाइंडिंग है, उनकी उस बाइंडिंग को मैं कदर करता हूं क्योंकि वो अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। जो अलायंस में है वो भी अपनी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं, मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन एज ए कश्मीरी पंडित अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को पहले रखते हैं सामने तो वो भी सबसे बड़ी विडंबना है। कहाँ है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सुबह से शाम तक टीवी डिबेट्स में रहती है या अपने छाती पीटते हैं हमने जी ये किया, हमने जी वो किया, और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आज इस क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल डिस्कशन में एक भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और मैं आपको ओपनली आज बोल रहा हूं अगर साइन कम्युनिटी हूं दुश्मन का छु यमई ऑर्गेनाइजेशन यमो काफी काफी वजह पे कम्युनिटी पे सान शानन पे बिहत यथ कम्युनिटी नाश कोर। बस गोडनथ माफी हवा। मैं इस मामले में बहुत बुलंट हूं
और मैं इसलिए बुलंद हूं क्योंकि मेरे को खोने के लिए कुछ नहीं है, और मैं साफ साफ सामने सामने बोल रहा हूं। जो हमारी कम्युनिटी से इस इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है, वो हमारी कम्युनिटी का रहनुमा और रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है। सतीश जी ने हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इनविटेशन भेजा है, बात किया है पर्सनली, और ये आज से नहीं चल रहा है, ये पिछले 10-15 दिन से चल रही है ये कवायद। पहले ये जम्मू में प्रोग्राम तय हुआ था, बाद में एन मौके पे कैंसिल किया था। मैं सतीश जी भगवान से शुक्रिया करता हूं कि हमने ये जम्मू में फिजिकल मीट नहीं रखा। ऐसे लोग आपके इस प्रोग्राम की क्या हालत कर लेते। और इन्होंने इस कम्युनिटी को हमेशा यही किया है। मुझे शिकायत ये नहीं है कि ये नहीं आए, ये अच्छी बात है। ये आज इनका चेहरा और बेनकाब हो गया, क्योंकि हमारे यही तो रहनुमा है आगे, इनकी ही तो पूंछ है। यही तो होम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं, यही तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलते हैं। और आज जब अपनी कम्युनिटी में अपने फैमिली मेंबर से बात करने का मौका आया, ये लोग पीछे हटे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सानी कम्युनिटी हुन दुश्मन छन कहां ते पॉलिटिकल पार्टी। हर कुछ पॉलिटिकल पार्टी दित अस मौका, सानियों दुश्मनों यम अंदर कम्युनिटी अंदर। तो सबसे पहले ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों को अपनी कम्युनिटी से बाहर फेंको। सतीश जी, मैं बता रहा हूं, मैं इनवाइट करता हूं नौजवानों को, मैं इनवाइट करता हूं यंगस्टर्स को, आप जैसे यंगस्टर्स को, और जो पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं कुछ यंगस्टर जो अपनी कम्युनिटी के प्रति दर्द रखते हैं, आ जाओ, मिलके हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसे लोगों को हमें जरूरत नहीं है बार बार मौका देने पर भी। ये लोग एक आम कश्मीरी पंडित, एक आम सोशल वर्करों को, एक आम सोशल एक्टिविस्टों को ये समझते नहीं है इंसान। ये प्रमाण है आज कि हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की रिहैबिलिटेशन, उनकी बेहबूदी, उनकी रिहैबिलिटेशन, उनकी सेटलमेंट कौन नहीं चाहता है। ये आज सतीश जी आपको प्रमाण सामने आ गया कि यही सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, यही कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें 70-70, 80-80 साल के लोग बैठे हैं, नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ट्रस्टों पे कब्जा किया है, मंदिरों पे कब्जा किया है, रुपलिकाज में बनाने लगे, कश्मीर से रुपया यहां लगा रहे हैं। जो ये चाहते हैं कि रुपलिकाज बाहर बने, कश्मीर से बाहर, ताकि कश्मीरी पंडित वापस न जाए कश्मीर। ये दुश्मन है हमारे कौम के। मैं आज बहुत अपसेट हूं और बहुत ही दुखी हूं कि एक भी कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन इसमें आई नहीं है। हम इस इंटेंशन से ये प्रोग्राम रखे थे कि हम पिछला सब कुछ भूल जाके हम इनके हाथ में ही बोलेंगे, हम इनके साथ हैं, आ जाओ, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। ये सर नहीं बात करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव की अपनी मजबूरी है, लेकिन जहां कश्मीरी पंडित का सवाल आए, वहां पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को खुल के बोलना चाहिए कि भाई पहले मेरी कम्युनिटी, फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं। लेकिन वो वो भी आया नहीं, वो समय भी नहीं आया है। अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव अभी भी हिचकिचा रहे हैं। और भी बता रहा हूं सतीश जी, ये जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के आज रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं आए हैं, ये इसलिए नहीं आए हैं, ये इसलिए नहीं आए हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम है, ये इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि इनको भिखारियों की बवल में कोई हिस्सा लेने की उम्मीद है। जो नॉमिनेशन सीट भिखारी बवल मिली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसमें ये आशा रखे हैं कि हमें उस बबल में एक टुकड़ा मिल जाए। लानत है ऐसी सोच पे, और लानत है ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशनों पे जिन्होंने हम जैसे कश्मीरी पंडितों को बर्बादी के कगार पे रखा है। जहां भी ये जिस 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 फोरम में ये आज के बाद बोलेंगे, और मैं पहला इंसान हूं जो आमने सामने इनको एक्सपोज करेगा। मैं माफी मांगता हूं ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन सती जी, दिल जला है, और दिल जला तो फिर देखता नहीं आगे पीछे। लेकिन ये जो हमारे कौम के गद्दार हैं, जो अपनी कम्युनिटी के, अपनी जो अपने मातृ वतन, अपनी मां का दुश्मन है, अपनी मां का वफादार नहीं है, वो सर सतीश जी कौम का वफादार कैसे हो सकता है?
इन्होंने हमारे पीएम पैकेज बच्चों को बंटवारा किया, इन्होंने उनको 9 महीने यहां बिना चप्पल बिना जूते एक सड़क से दूसरी सड़क पे घुमाया। किन किन लोगों से आशा करते हो आप? यहां कुछ लोगों ने बोला हमें भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अरे ये मौका नहीं देते हैं सर, ये हमें बांध के रखे हैं इन्होंने। एक एक बंदे ने 10-10 टर्म, मैं हमेशा बोलता रहता हूं इनकी टेल टाई है, इनकी जो ये लचवाट छु ये छु कशरिस कौमस खतर कशर पंडित कौमस खतर बड़ खतरनाक। अकिस जाय करियो तो थप सारन हज लच दजान, योतान यम लच तो यमन जलियो तोतान महाराज अंजो न की। देयर इज नो सॉफ्ट कॉर्नर, no soft policy. You just invite the like-minded people, as Bhushanlal has told. You just invite the like-minded who love their motherland, who love their mother, who love their nation, who love their roots, and move forward. And definitely, there are lot of people I have met who are just waiting फॉर रिहेबिलिटेशन। वो तरस रहे हैं, वो तड़प रहे हैं रिहेबिलिटेशन के। यहां किसी ने बोला कैंप वालों में, मैं कैंपों का दुश्मन नहीं हूं, यहां सिर्फ बोल रहे हैं कैंपों ने प्रॉब्लम देखी है, कैंपों ने मुसीबत देखी है। अरे पीपल आर स्टिल ऑन द रेंट एंड दे हैव ओनली वन सोर्स, दैट इज रिलीफ। दे आर पेइंग द electricity bill, they are paying other charges, and they are not able to live their life with satisfaction. It is there, it is still there. So don't bifurcate between camps and non-camps. All Kashmiri Pandits, all common Kashmiri Pandits, I can say, are willing to return and willing to return very soon. And it has been ridiculed and it has been misguided by government of India, whosoever came in the power. And we have lot of hopes in 2014, 24th of March 2014, when our Prime Minister have come from. Bharatji, can you please keep it brief and let us stick to the main topic. चलो सर मैं बंद ही करता हूँ, आपने मेरे से ही शुरू कर दिया भारत जी। अभी तक इतने लोगों ने बोला, आपको आपने किसी ने टोका? आई एम सॉरी। नहीं, टोक नहीं रहे हैं, but we have a lot of people lined up. तो बनियो सर कोई मजा ही नहीं है ना। नहीं, या तो पहले से ही आप टाइम फिक्स कर लेते, 5 मिनट है, 2 मिनट है। आपने किसी को अभी तक नहीं बोला भारत जी, वेरी फ्री, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। नहीं, प्लीज कैरी ऑन। भरत जी आप बोले करके बोले। Actually, in the beginning, we have requested everybody for 5 minutes because of the time we have given up to 9 o'clock. Yeah, please. Yeah, Daisy Rana ji, please. जी एक्चुअली मेरी 9:15 बजे डिबेट है, उसमें ऑल पार्टीज होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार सारनी सर। सर मैं श्रीनगर में ही अभी हूँ, श्रीनगर में ही 3 साल से काम कर रही हूँ। बकर कोशिर पर कत में खुश लगन कोशिर पर वैसे कत करी तो बचत कशीर मजी महरा काम करा मियन छुते। तो डू यू गेटिंग मी ऑल सर? हेलो, प्लीज गो अहेड। तो मैं कश्मीर में काम कर रही हूँ। अभी भारत जी बोल रहे थे, पहले मैंने एक स्पीच मेरी शायद वायरल हो गई थी, जो भारत जी ने मुझे रिकॉर्डिंग की थी मेरी, उस टाइम इन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरी करी थी, जो वायरल हो गई थी। उसमें मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं कश्मीरियों का सपोर्ट नहीं करूंगी, अपने पंडित, मैं भी एक पंडित लेडी हूँ और मैं मुसलमानों का सपोर्ट करूंगी, ये मेरा इंटेंशन ही नहीं था। लेकिन इन्होंने, चलो कोई नहीं, इन्होंने मेरी मैडम प्लीज, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, दैट वाज योर स्टेटमेंट ऑन सोशल मीडिया, सो प्लीज डोंट मिसगाइड एंड मिसलीड टू द कम्युनिटी। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, योर स्टेटमेंट वाज ऑन सोशल मीडिया एंड इट वाज ऑन नेशनल टीवी चैनल। प्लीज डोंट, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, इट वाज ऑन नेशनल टीवी। वो था, you have given the statement in open channel, madam. Don't tell me Bharat ji has recorded. Have I ever talked to you? Have I ever talked to you? Have I ever talked to you on the phone? सर मुझे फोन मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है? Don't tell lie, please.
Can we सर stick सर to the प्लीज main topic? सर प्लीज Can we प्लीज stick to प्लीज the main topic? अच्छा ठीक है, आपने आपने नहीं किया, किसी और ने किया, ठीक है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वो आई है जिसने मुझे भेजी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने नहीं की, किसी और ने की। मेन मुद्दे लेकिन पे की बात करें प्लीज। लेकिन किसी कश्मीरी पंडित ने की, ठीक है सर, आपने नहीं की, कोई बात नहीं, किसी ने की, कोई बात नहीं। मैंने उस टाइम भी बोला मैं कश्मीरियों के लिए यहाँ काम कर रही हूँ, मैं भी सबसे पहले छस बह कौशर बटकूर अख बह कर कौशरन बटन हुंद वथ में दर्द बह छस तम विज द्रामच तो अस तह बह करती, मगर येन रूजित छस बह काम करान, बह छस गाम गाम नचान, बह छस गाम गाम गसान ये मेहनत करान पन्ने कम खतर कि कौशर बट ये है बे वापस इस रलहा बे। मेरे मन में यही है, एक इंसानियत है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मुसलमान शिया बट शिया कुछ शिया क्या कि, मेरे मन में ये ऐसा नहीं है। देखो अगर हम हिंदू है तो मथुरा हमारा है, अगर हम मुस्लिम है तो दुबई हमारा है, मक्का हमारा, अगर हम इंसान अच्छे है तो संसार हमारा है। ये इंसानियत को अगर हम महत्व देंगे ना, हमें इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए। ऐसे गो तम वीज गलत, ऐसे गो गलत तेली चल चल कह पन गर कह त्रावन तो मगर मगर मे पता मनस मज कि मे कित तम ठोकन बह वन ये ब्रो कन दिम बह बुथ पन पान मे पन सिक्योरिटी गो वुचिन कि बह वन तिमन अस गो गलत तो सह गो गलत, यह मे वन जरूरी तह सह गो गलत क्या मे रोजुन मे खतर मे पता मे सह क्या पे मे क्या फेस कर 3 वरियन। सर बाकी कि अस गई पान वन कुनी कत, अस सा कुनी कत कह, अगर ये बह करान कि हे आज वन द्राम ब्याक बटन खबर कौन यह मज करान बनेम उतर पे खबर इलेक्शन सा लड़न मैंडेट सा, वो चीज हम बोलते हैं एक दूसरे को, ये चीज हम में ये बहुत गलत है। अगर हम यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, मैं एज ए कश्मीरी पंडित लेडी हूँ, कश्मीरियन कतरवाना बट बे वापस ये हमारी जन्मभूमि है, हम आएंगे। हम ये जबरदस्ती नहीं करेंगे कि जिसको नहीं आना है वो नहीं आए, जिसको आना है वो तो आएगा, उसके लिए खुले दरवाजे हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है सिचुएशन ऐसी है, हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, कि ये हमें देखना है। इस चीज को हमें गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, हम सबको एक होके, ये नहीं कि हम अलग अलग हैं। हम अपनी आज तक कोई संस्था नहीं की है, तो मेरी आज यहाँ पे दिल्ली में रहती हूँ, द्वारका में ही रहती हूँ, लेकिन हाँ कश्मीरी हवन वगैरह अटेंड करती हूँ। मेरी सहेलियां है बहुत सारी, हमारा यारबल का ग्रुप है द्वारका का, उसमें मैं हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं किसी संस्था में वगैरह में जाऊंगी, मेरा ये है ही नहीं। तो मैं करती हूँ सेवा अपनी तरफ से जो करना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है ये संस्थाओं में जाना, फिर हमारे कश्मीरियों को मदद नहीं करना, मुझे बहुत दुख होगा उससे। देखो मेरे जगती में जो भाई बहन रहते हैं, जो भी कश्मीरी कमेटी के लोग रहते हैं, उनको आज तक किसी ने नहीं किया। आपकी हालत देखिए वहां उन फ्लैट्स की क्या है। हम अगर इतनी कमिटीज है, इतनी ऑर्गेनाइजेशन है, हम क्यों नहीं उनकी हेल्प करते हैं? मैम एक रिक्वेस्ट हम है, क्यों एक रिक्वेस्ट है, सब्जेक्ट हमारा आज है कि जो रिटर्न को हाँ लेके है, एक यूनिफाइड मैसेज कैसे जाए, आगे का क्या भविष्य है, हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ संक्षिप्त में जी बताएं। जी थैंक यू। आगे हमें ये करना चाहिए कि हमें एकजुट होके गवर्नमेंट से अपने हकूक लेने चाहिए। जो भी है हमें आगे बढ़ना है। हम कश्मीरी पंडित, कश्मीरी भट्ट ये रोजान वल वो मोदी जी असा तुम करान कहें सान खतर सूचू तुम आज तान कहें ना तुम वनान मे पता कि क्या तुम साइलेंट क्या तिमन वोट जरूरत ये मुसलमान वोट तम हेकन बटस सपोर्ट कर कहें योतान तम इलेक्शन हेकन जीनित। लेकिन वो सवाल ही नहीं है कि अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ पे बीजेपी बहुत पीछे हो चुकी है अब, तो वो क्या है उनके करतूत क्या वजह से या उनके वर्कर्स की वजह से जो हुआ है, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे क्या किया वो मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं हम सब अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम अपना काम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं। अगर इस बट कमेटी सारी मेलहा सारे संस्था मेलहा ये वो संजय जैन तह वो तह ती करहाव अक्सी जाए मेलहाव अक्सी जाए जिलमहाव अकुई लीडर चुनहाव मा करहाव तरक्की। सारी लीडर, हम सब लीडर है, सारी दपान बह लीडर है बह होते रोजान एब्राड बह कुछ तान बह दिल्ली रोजान बह कुछ तान बह प्रोफेसर बह वीसी बह लेकिन हमें सब डाउन टू रहना चाहिए। हम इक्वल है, एक ग्रुप में रहेंगे, एक मिलजुट के हम जाएंगे। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी बोल रहा है, जो हमारे हक है वो हमें मिलने चाहिए। हमारा जन्म स्थान है, हमारी बर्थ प्लेस है, हमें वहां क्या रेनोवेशन करना है, जिसको भी जाना है, जो अपने घर में रह सकता है, जहाँ फ्लैट्स में रहना है, जो भी है हम एकजुट होके। ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि वन ये सारी तह चो बटन कहन गाव द्रम तह कुन कथा तुम अत सुन बर्दाश्त कर यह ये वन पड़ोसी मे सारी मुसलमान ये या ब्रो कन शुपियन बट या ब्रो कन ब्या त्राल हेर बबीता जी यपर ब्या बट रूजित हेकान इन कहें दपान है 50 फैमिली ये रोजान। बस एस्टेट क्वार्टर रोजान ये पामपुर
लेकिन कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर कीर्तन नवरात्र में तो क्या कीर्तन कर नवरात्र में मैंने घर से स्टार्ट। तो हमने वो किया क्या, मैं तो मेलहाव इकवट इस बट यहाँ पवन जी है, वो भद्रकाली में बहुत अच्छा गाते हैं। सुशी वन भजन वजन गवन तो अस सोरी सह गई पे जालाय वाला। उसके बाद मैंने शंकर शिवलिंग जयपुर से मंगाया, मेरे वहां पर ब्रदर है, उनको बोला कि तुम तो बकर है अथ मंदरस के हेल में मंदरस में हेल में दियो तो शंकर बाकी हम बन पान में कित कर। उन्होंने मुझे ये शिवलिंग भेजा, मैंने वो नीति लगो मैं तृसिल पुलवामा में, मैंने पुलवामा में वो लगाया, लेकिन मेरे पास सिक्योरिटी नहीं साथ थी। मैं कहीं सिक्योरिटी सह मे रटम 3 वन वन दिख मे सिक्योरिटी पे मैं पार्टी ज्वाइन करी अपनी पार्टी। तो बह गई गामस मे कोर विज क्या, मे लोग शंकर, मे लोग मुसलमान वी तम कोर सोरी तम कि यह मे क्या मे कर तन तिस कि ये विज मे मुसलमान दपान ऐसे दिलस मन जाए। मे कर बटन हज तम मे कर मंदरन 3 तक शिव मंदिर तन राजबल ना तथ वन महालुद्रा, महालुद्रस लोग मे शंकर तो ये मज मंदिर वंदर कहें मे दोप तन बनावन शायद पार्क, मे बासो अतन बनावन पार्क मे वो तम बनावन पार्क, मे वो जल्दी जल्दी वो मे तमिस पस दिल सब लाल तो सूझ मे शंकर तमो सूज सह ट्रेक मज दिल्ली पे ओन कित कश्मीरी गेट पे ट्रेक मज मे कोर शिवलिंग तन स्थापित, यह सब वायरल तक गई न्यूज शायद तो आसो वुचमुत। तो अब मैं दूसरा भी इंस्टॉल कर रही हूँ वहाँ पे शिव मंदिर में, मगर अस गणत पान वन यूनिटी थवन, यह मे रिक्वेस्ट सारे क्या सारी रेच खारान दपान तो बटन कहन गावरम तो द्राव तमी ये कि यह गई यूनिटी कर कुन जाए। बहुत करान यह ऑर्गेनाइज, मे भाईचारा ग्रुप अफ थोमुत तथ मे कर मे अलका लोहरी जी कत चलू कर कनाडा पे कत वारिया बट मे कर दिल पे कत तम तरन योर करो मुसलमान सत थोक भाईचारा ग्रुप अस वो ये लुक यछन क्या ये मुसलमान वन यमो तुम लड़ो तुंद खतर क्या तुम तमत वन तम मकले यम दपान हे ना ये गोस आसन असली बट क्या तोतान पॉसिबल ये गसन हालात ठीक योतान बट मुसलमान पान वन कत कर। ये हम यहाँ के रूट्स है, हमें तो मिलना है जरूरी है इनसे, हमें इनसे बात करनी जरूरी है। अगर इस पीएम पैकेज बच्चे बिचारे परस तम बिचार तापन मज बिहित जमिस मज बिहित अस कोर कहें तिंद खतर, अस द्राव ना बट नबर, अस तोतान सियासत करने, अस तोग कहें, अस तोग तिमन कहें वन तो अस तिंद खतर लड़न, अस सारे मालन माजन तो अस बटन तिमन पत सत रोजन। तम बिचार गई पे फाइनली गई तम बिचार तमो दोप अस गो वापस वन क्या वनो वनकन पीएम पैकेज वालन गन तो यह गन ये तमन तन दुत सपोर्ट जमिस मज। ये हमें करना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी है। अस गि यूनिटी पान वन कुनी अकुई लीडर कह कि अस कहन गाव रमज कह अस 10 सनस थाई अक सनस था, अगर 10 सनस थाई तम विज रलो अक कुनी जाए करो चीज प्रोग्राम गो सारे सनस थाई तन आजन चुनहन या 2 लीडर बस तमसी पको पत यही करना चाहिए हमको। देखिए ये नहीं कि हुचू लीडर बुचो लीडर बुचो पन समाज वुचो कश्मीर समिति वुचो KSD वुचो KDD, ये सब मुझे नहीं पसंद है, ये नहीं करना हमें। अगर हमें कश्मीरी भूमि चाहिए, अपनी जन्म भूमि चाहिए वापस, तो हमें एक साथ एकजुट के लड़ना पड़ेगा, एक साथ मिलना जरूरी है हमें यहाँ पर। यही मेरी एक विनती थी। जैसे सतीश जी ने पहले भी, इन्होंने एक तो यास्मीन खान आई थी यहाँ पे, मैंने उसको भी ही बोला, हम कश्मीरियों को बहुत दर्द हुआ जब हमारे साथ यहाँ पे हुआ ऐसा कि हम निकलने पे मजबूर हो गए। हम ऐसे नहीं निकले, किसी को शौक नहीं होता अपनी जन्मभूमि छोड़ने का, हमारे साथ हुआ ऐसा तभी हम निकले यहाँ से। लेकिन तम बट यम ये रूजित वनकन तम ये रूद ये मन तम मान तसल 4 गर रूजित, तसलस मन 4 गर रूजित, तम वन तम हेकान मंदरस तम ग मगर तम हेकान मंदरस कह तिमन दो मे ये हसा लग वन एरलडाइट यम मे गणेश वनेश ये वन तुह क्या लोगो न दोपन है वन दपान तम तूत खोचान तम सह क्या फायदा गो मज रोजन तिमन बटन हूं यम नन मंदरस हेकान शिवलिंगस थोड़ा सा एरलडाइट तूत गणेशस लगित बह गस ये पे बह लाग मे वन तिमन तुम डोन फस्ट दिवान ए कति सुबह त्रावन वन पारस मे पारस ओन मे तुंदी खतर शंकर योतान तुम तो वह क्या वनो मे लोग तत फेंसिंग तुम करू न बिलियो मे लज फेंसिंग अकिस तत मंदरस अकिस अंद अंद मोन बट बोय गो ठेकदरस तम कर मे वीडियो कॉल वुच ए बा चा ये यार मे यपर जमीनस वत कथो फेंसिंग लगावान ये वो बटन एक तम तत रूजित मैं मुझे बहुत फील हुआ उस टाइम। तो मैं वो तमिस बटस मे हे तुम ये गलत करान बह दिमो तुम बे तरफ तुम हपर वत तुम हपर वत तुम क्या करान मंदिर जमीन में दिमो बह वत गलत तुम बट ये वन हपर वन कशर पे ये रूजित ये गो गलत सठा सह वो बट नहीं तमिस पे खज तम माफी मगर वो उसने किया ऐसा करते हैं, ये भी पंडित ही है। लेकिन वन इथे कन तो यूनिटी भाव मे कर्म कत मुसलमान बटन सत करो प्रोग्राम सतीश जी वनो कित करो तो ये योर मेन जिम गो तो ये ठहरना बह कत ठहरना हो तुम सह गो म्यान जिम
सॉरी को मैंने जिम्मे, बाकी करेंगे यहाँ पे बात, हम मिलेंगे यहाँ पे सबसे। आप देखिए कितना मिलसार हो, इनको भी चेंजेस आए हैं, ये भी चाहते हैं कि बडगोस वापस उनकी कि ऐसा हो गया इनके साथ, ये भी चाहते हैं कि ना बट स्थिति है कवच में ठीक रोज, ये है, ये मुझे पता है कि मेरे साथ इनकी बातें होती है, मेरे साथ यूथ होता है, मे बैतुल माल कमेटीज ये मुसलमान हज तम मे सत कर तम यूथ पर लिखित बच्चे मैडम तमो मज क्या जाए 90 पे जाए 94 मज जाए 96 मज, मगर अस करे मिलिटेंसी पान लेखन अस क्या वनकन चोब पेवान तो अस क्या वनकन ये ट्रीट कर अस बने सन मल मंगन आज़ादी अस मंजे नी क्या अस क्या करान ये मे वो तिम वो अत क्या ना क्या हाल नेर अस बट बच्चे तन कदस मज रूजित तम तन नबर नेरन तम तो गिंदन असल पे ये तुह छो नबर नचान अस क्या बेहान बट ये कूद तम क्या बेहान चूर बिचार कूदन हंद पे यह कर गो ओपनली ये नेरन ड्यूटी तम गसान तमन सत दोहस 12 घंटन या 8 घंटन तिमन सत बीच तम गसान प्रत कुन जाए रेस्टोरेंटन मन ये तम विज मुसलमान सम गुमित हुत कन क्या वन मुसलमान खराब या मुसलमान मारान असे क्या कर असे नचान तमन सत असे वंदस वन तम जगती वुच मे उतरोस खानदार 7 मुसलमान सुम्बलि पे आम मानसबल पे 7 मुसलमान तम ब्रोट कन सोफन पे सो बिल्किस गवान तमो कर तम रोफन ब्रोट कन मोन पफ्तर बोय सो नेहरू तम सी कोर खानदार मगर तमिस तन अख बट सोन तमे अन तम सुम्बलि पे तन बीठ तम ब्रोट कन मे वन तिमन हे क्या गवाओ हे बस साढ़े सात मुसलमान रोफ सो वो मे बट नहीं पन ये तिमन तिथ कन ट्रीट कर हुत कन क्या वन मुसलमान रदी क्या गो तेल करू सा ओपन तेल वन सोद निमो रदी करू सा बायकाट तो क्या अलहज तो डून मंगनावन वंदस दिल तो या जुम तो पछू दपन मुसलमान, ये मुझे बहुत गंदा लगता है। अरे ओपनली कह दो ना, आप लोगों ने हमको निकाला, जैसे मैं इनको कहती हूँ दियो ये मकान कुंज सब हम बट वन सन वर नीव नीव दिल विल सन मकान बेचार, मैं तो ओपनली बोलती हूँ उनको। मैंने कहा मैं मुझे क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पता है ये कुछ मुसलमान मे वन तो करवा सन ये जामित मैं बोलती हूँ, मुझे नहीं डर लगता। जिस दिन मरना होगा मरेंगे, जिस दिन लिखा होगा वो भी इंसान होगा जो मुझे मार सकता है जबरदस्ती। हाँ अब मुझे सिक्योरिटी है, मैं सिक्योरिटी यहाँ पर जोन में भी रह रही हूँ, लेकिन पहले मैं ऐसे ओपनली घूम रही थी, अब मुझे आए ऑर्डर्स के नहीं, ऐसा नहीं है कि अब आप ऐसे मत घूमो कि एसएसपी आई नहीं, उसी ने बोला किसी जार सिक्योरिटी ऐसे गच्छा सुन सर मुझे ये मैडम ये मुझे पसंद ही नहीं है ये चीज, ये शोशा फोटोज खींचना, मुझे दिखाना, मुझे पेश, मुझे काम करने दो, मैं चुपचाप कर रही हूँ काम, मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, ना करेगा कोई, मुझे ये विश्वास है। क्योंकि बस तथ चीज कुछ दखल अंदाजी कर मे क्या जरूरत तस मे पन बटन हूं हक अन सह अन बह साइलेंटली दिलस मन मतलब यहून दिल रचित वापस अन, ये मैं बार बार इनको बोल रही हूँ अस बट वापस अन ये ची ये जन तुह कड़ो ये तुह कड़ तुह गो बेचन वनकन तो तिथ बट अस कोर सर्वाइव अस बन पन बच, मगर यम मे हेकान तौर जवाब वन कह दपान चाने खतर कड़ो खून सह दिमो क्या तिज बटन सोन तन बटन हूं तन। मुझे आजकल इतने फोन आते हैं यहाँ पे, जैसे अभी कल ही मैंने इन्होंने कहा इफ्तियारी करनी है, शायद सतीश जी जानते भी उनको, जावेद ककरू जी है, तो उनके साथ हमारी थी, हमारी लड़ गई यहाँ पे, तो वो उनके साथ हमारी इफ्तियार पार्टी थी, मैंने वहां पे भी यही किया, मैंने उनको भेजा भी व्हाट्सएप पे, मैंने उनको बोला है हमें कश्मीरी बट हम आएंगे यहाँ पे वापस, हम रहेंगे यहाँ पे सर। तो इसलिए मेरा लाइट गई है थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है सर, तो आप कह रही हैं हम दूसरे को बोल दीजिए आप, ठीक है सर। मेरी 9:15 जो ये है डिबेट, थैंक यू वेरी सर गुड। थैंक यू दीजिए आप मुझे काम मौका करते रहिए, आज बोलने का। बहुत अच्छा लेकिन लगा सुन के सर आपको, आप काम करते रहिए। सतीश जी अख प्रोग्राम करियो तुम प्लीज, तो तुम योर बहो तो ये मज मेलो मुसलमान सत गो कैंपन मज निमो ये मुसलमान सत वन तिमन तुह का सख्ती मा छो क्या मा छो, आपको मैं दिखाऊंगी ये चीज होएगा, ठीक है सर। थैंक यू जरूर थैंक यू जरूर थैंक यू जरूर, मुझे सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, बुलाने के लिए। सो ठीक नाइस सर, थैंक यू थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। विचार अच्छे हैं, इसके ख्यालात अच्छे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। So Sanjay Saproji, could you unmute yourself please? संजय सप्रू जी। नमस्कार सर जी, आवाज आ रही है सतीश जी मेरी? सर आ रही है, सर आ रही है। तो मेरे से पहले जो स्पीकर बहन थी बहुत अच्छा बोला उन्होंने। डेफिनेटली हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो ऐसा ही बोले। अब मेरे को वाइल हमारा टॉपिक था रिहेबिलिटेशन पे, एंड अगर हम देखें कुछ 2-3 स्पीकर्स ने डेफिनेटली रिहेबिलिटेशन पे बात की, बाकी तो आई वुड से इधर उधर ही गए, फ्रैंकली। तो
हमें, और दूसरा कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वी शुड नॉट टेल, should be basically if you ask me, we should tell to we should not criticize बीजेपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये कहने का मतलब है, हमारे साथ 2014 में किसी ने वादा किया, जिसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम को सपोर्ट भी किया, फिर उन्होंने उसी वादे को एक्सटेंड किया 2019 में, फिर हमें उनको फिर से उस टाइम सपोर्ट किया. 86% ऑफ कश्मीरी पंडित वोट्स 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हमने दिए उन्हें. अब कितने पड़े उनको कश्मीर में वो छोड़ दीजिए, बट 86% ऑफ कश्मीरी पंडित वोट बीजेपी को मिले. 56% ऑफ बीजेपी के कश्मीर रीजन के वोट हमारी कम्युनिटी से गए. बट अगर आप देखोगे 2019 के बाद आज तक ना हमारे लिए कुछ किया, ना हमारी कोई बात करते हैं, और उसके ऊपर हमारे साथ एक भद्दा सा मजाक करते हैं. एक थोड़े दिन पहले एक मीनाक्षी लेखी एमपी ने किया, 2 दिन पहले संजू वर्मा जी ने किया. If we are not a priority for them, then they should be very explicitly, don't use our name at all, neither in your manifesto, neither in anywhere. Tell us we are not the vote bank, we are not vote bank. We will move on, they can also move on in life, and let's see. एक संजय सराफ जी पहले बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोलते थे, आज उन्होंने बोला नहीं है. संजय सराफ जी कहते थे कश्मीरी पंडित के नाम पे अगर 2 से 3% वोट ही बीजेपी को ओवरऑल इंडिया में मिलता है, दैट ट्रांसलेट्स इनटू 10 to 15 seats for BJP in India. If we have been able to give this kind of a seats to BJP, even though we are not a community that has votes internally within the community, I think demanding this from BJP, that why you have ditched us in 2014 as well as why you have ditched us in 2019 is a fair ask. उसमें कोई शर्म नहीं करनी हमें, उसमें कोई हमें हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं. हम 10 साल वेट कर चुके हैं, 10 साल बहुत होता है. अब आप बोलोगे कंट्ररी, लेट अस से हम कांग्रेस को बीजेपी वाले स्पेशली कांग्रेस को बोलते हैं दे हैव बीन इन द अपीजमेंट मोड टुवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी. ओके, बट आप देखिए ना अपीजमेंट क्या चल रही है आजकल 2014 से, इवन 2000 स्पेशली 2019 के बाद, टुवर्ड्स मुस्लिम्स इन कश्मीर. फुल फ्लेज्ड अपीजमेंट चल रही है फ्रॉम बीजेपी. And when it comes to Kashmiri Pandit, they are just not opening their mouth. आज की डेट में आप बताओ, a common Salman in Kashmir is much happier, but he got all schemes, he is benefiting from everything. But when Kashmiri Pandit, it comes to Kashmiri Pandit, कुछ नहीं है जी. आप जी आइए, अपनी पार्टियों से बात कीजिए, आपके पास 100 पार्टियां हैं, आपकी डिमांड 50 है, आपकी वो है, आपकी ये है, यही चलता रहता है. व्हाई दिस? हमारी अगर 500 ऑर्गेनाइजेशन भी है, बट हमारी डिमांड तो सभी की रास्ता अलग है, मगर डिमांड कॉमन है, रिटर्न. अगर हमारे कुछ लोगों को नहीं जाना है, जिनको जाना है उनको तो पैसा दे. कल भी एक अच्छा काम हुआ है, टाइम्स नाउ ने कुछ लोगों को हमारे माइग्रेंट कैंप्स में भेजा था जम्मू में. एटलीस्ट वहां के लोगों ने क्लियरली बोला भाई हमारा रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की बात करो, जिसके ऊपर बीजेपी ने कुछ नहीं किया है. उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात की. डेफिनेटली हमारे को ये नॉमिनेटेड सीट की बात हमारे लिए कुछ नहीं है. नॉमिनेटेड सीट नथिंग फॉर अस. अगर बात करनी है तो हमारे को वी शुड बी एबल टू इलेक्ट अवर कैंडिडेट. वी डोंट वांट टू
somebody should select candidates for us. उन्होंने डेफिनेटली एक और तीसरी बात भी की कि उन्होंने बोला कि हाँ डेफिनेटली 108 रुपये जो आप एक आदमी को एक दिन का रिलीफ देते हो, दैट जो 2014 या 15 में सेट हुआ है, वो डेफिनेटली आज के किसी एक फेडरेटर लेबर से भी कम है। और उसके कंट्रे हमारी एक भी ऑर्गेनाइजेशन इस पे बात नहीं करती है। ये बिल्कुल भरत जी का कहना सही है। सारी हमारे यहां पे कुछ हो जाता है तो जीके पीडी वाले खड़े हो जाते हैं, यहां पे कुछ और हो जाता है तो आरआईके वाले खड़े हो जाते हैं, यहां पे कुछ और हो जाता है। कानून कश्मीर वालों ने अभी एक डिबेट की इस पे, गाजा और इजराइल पे, बट कश्मीरी पंडित के नाम पे तो कुछ नहीं। ये लेटेस्ट कानून कश्मीर का गाजा पे उन्होंने एक डिबेट की। क्या मतलब है गाजा इजराइल पे? कोई मतलब ही नहीं। कश्मीरी पंडित तुम घर की बात करिए ना, अपनी बात कीजिए जिसको आपने एक सपना दिखाया था। सो आई फील दैट our organizations, actually people who are holding on to our organizations, they have no direction, they are directionless. They have been used to giving ये अपना memorandum, वो अभी भी उसी में बिजी है, and they have been using Kashmiri Pandit cause for their personal gains across the board, across organizations, and I think that has to end. If Kashmiri Pandit is really interested in the community, and the कम्युनिटी के जहां पे बीजेपी थी, बीजेपी की बागडोर एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और अपने अडवाणी जी के पास थी। आज की डेट में उनके पास नहीं है, 2014 में भी उनके पास नहीं थी। सेम वे कश्मीरी पंडितों की भी बागडोर एक नेक्स्ट जनरेशन के पास आनी चाहिए, जो रास्ता दिखाएगी। जिनको वापस जाना है, जिनको वापस ही नहीं जाना, उनके हाथ में बागडोर देने से क्या फायदा है? आई थिंक आप लोगों को ये समझना है और आप लोगों को रियल बात पे बात करनी है, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पे, एंड दैट इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। बाकी कोई फोटो डालेगा और उसके बाद बोलेगा जी मेरे को रिटर्न करा दो, कोई गोल्फ खेलेगा उसके बाद बोलेगा रिटर्न करा दो, उससे कोई मतलब ही नहीं। दोज आर ऑल personal people, such people are only using Kashmiri Pandit cause for their personal gains. Thank you. क्या ये बकवास कर रहे हो गोल्फ की बात? व्हाट आर यू टॉकिंग नॉनसेंस? क्या हो गया तुम्हें? Well, Sanjay, thank you very much. You have eliminated the floor. Request Ashok Bansal, please kindly enlighten us for the future course of action, what we collectively as a community should look forward towards the return and rehabilitation. अनम्यूट कीजिए बादशाह, अपना अनम्यूट कीजिए, फोन अनम्यूट कीजिए। यहाँ जो भी बोलता है वो पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स पे बोलता है। अभी ये संजय बकवास कर रहा था, कह रहा था कि जो गोल्फ खेलते हैं वो पंडित गोल्फ। सर नमस्कार। And he is also playing the Warwickshire से और तो भवन वारविक। Yes, here. And such people, they change their stance. Garachu AI KSS manz asan, Garachu asan, Kashmir in civil society se Garakata se. So I don't give damn to nonsensical talks. I want to say 3 points which are very relevant to this discussion. Relevant is that there is a national consensus across the spectrum of politics, be it Congress, Communist Party, even Muslim League of India, and all other small parties, even Akhilesh's party, Mayawati's party. Each party has one single policy on Kashmir, that is that Kashmir should get mainstream,
That is how they support Prime Minister on Kashmir. Number two, that all those displaced because of terrorism and all the atrocities which were caused to a minority community there, they must be resettled back to their homes. There is a consensus. There is no doubt about it. We have not to go to the doors of anybody or everybody. There is a political consensus. That consensus has to be taken note of by the current dispensation, because they have to prepare a module of return for us. Without the soft and hard power of Indian state, Kashmiri Pandit cannot move an inch towards resettlement in Kashmir. Let's be very clear about it. And it is the duty, not only moral but constitutional duty of the current dispensation, that they have to plan out a structured repatriation module for this community which has been longing to go back and which has lived in the most traumatic conditions as be, and only emphasis would be matter what the smaller players say. I got a tweet from somebody that why don't you react to Sanju Verma's? I have not to be dictated by anybody whether I should react or I should not. Who are you to tell me? I have my own conscience. I have been there in the game for last 37 years most consistently. And before that also when people were not even born. So therefore, I have not to be dictated or told that what I should do about the community affairs. I am doing enough. I am doing my bit. I have been doing it. I'll continue to do it. Therefore, the only question remains, hard and soft power of Indian state has to be mobilized, that there is already a consensus across the political spectrum of repatriation. They have only, and I want to tell you one more thing, we have done enough for last so many years to brief Government of India and the Parliamentary Committee on Kashmir Affairs, which was headed by Sushma Swaraj. There is already a plan which is written by the Parliamentary Committee how to rehabilitate and repatriate Kashmiri Pandits back. Only the Home Ministry has to look into those reports. And then my consistent demand has been so far that we must be recognized as a stakeholder in the affairs of Kashmir. And I have been going to this extent that as a stakeholder, until you talk to us, until you rehabilitate us back, physically back in larger numbers, not in 6,000 jobs, in larger numbers as a community, unless it is rehabilitated back. And Kashmir's mainstreaming agenda of current dispensation, which they call Naya Kashmir, it will always elude them. It will always be a failure without the physical participation of a Kashmiri Pandit on the day-to-day affairs of Kashmir. Mind you, it is not that we don't have any future in Kashmir. We have a future in Kashmir, and the whole investment taxpayers' money is going to Kashmir.
And we have to take advantage of that taxpayer money, that whatever share जो मेरे को शेयर अपना चाहिए उस टैक्स पेयर्स मनी में कश्मीरी पंडितों के लिए, वो शेयर हम फोरगो नहीं कर सकते। और कश्मीर हमारे लिए मातृभूमि है। हम जहां जहां आज हैं वो तो हम कर्म भूमि पे हैं। मातृभूमि के साथ हमारा ताल्लुक रूट्स का है, जज्बे का है, इमोशन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, हमारी एग्जिस्टेंस का है, जिसको मैं कहता हूं वी हैव एन एग्जिस्टेंशियल स्टेक इन कश्मीर वैली। तो कर्म भूमि को देख के हम भूमि को अबंडन नहीं कर सकते हैं। मातृभूमि पाकिस्तान के हाथ नहीं गई, मातृभूमि हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और अगर हम अपने आप को भारतीय कहते हैं तो हम जो उस सिविलाइजेशन के लोग हैं कश्मीर से हैं, तो हम कैसे सिविलाइजेशनल रूट को अबंडन कर सकते हैं? क्योंकि हम कर्म भूमि में ठीक ठाक रहे, छोटे छोटे पिंजरों में, फ्लैट में या मकान। This is not the progress. This is not the freedom. The freedom freedom of our religiosity, freedom of our spirituality, freedom of our expression, freedom of our roots, enjoying the human rights overall is the मातृभूमि। उस मातृभूमि को आप अबंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कहते हुए अब 30 साल हो गए अस गए वह तसली। कशीर हंस अगर सिचुएशन तब्दीली मज यवान छ आज, तमि तब्दीली हुंद पे अस फायदे तुलन कलेक्टिवली तो इंडिविजुअली। सो तब्दीली छ सानसी हकस मज गसान। अगर गवर्नमेंट का प्रयास करान छु तति तब्दीली अन्नस मज बह तारो इत कन फिक्र। आपका आवाज अनम्यूट करे बांसर में। तमिस वनकस सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम बन, मगर गवर्नमेंट हेकमिस ज्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर। Therefore, my request is if there is a national consensus on our return and rehabilitation, we have to emphasize on the current dispensation that would be done after the election. ये manifestos मज थवना, पत बाकी parties थवना, यह तिमो थोमुत, अत वो 30 वरी तिमन थवान, अत पे बाज़ाब्ता कंसेंसस। मगर यथ सरकार एग्रीमेंट कि यम विज तुम डायलॉग छो कशरन सरान, कशरिस बटस क्या तुम बुलाव, कशुर बट बुलोव नहीं। यम विज मोदी जी वोन हमने दिल की और दिल्ली की दूरी दूर करनी है, तथ मीटिंग मज न पंडित कह। अगर कह पंडित इत कन वुन मसलस, अगर तथ मज महलदार सब आ बांसर आपका नेटवर्क सरकार से हिम्मत हारने की जरूरत छन। We have not get disheartened. This our return rehabilitation is very much on the agenda of political spectrum of India, and it is on the agenda of BJP, Congress, and everybody. So therefore, we have a support, we have a sympathy. So we have to march on. थोड़ा पानस मज कलेक्टिव विजडम आन, कलेक्टिव डिसेंसी आन, कलेक्टिव पॉलिटिक्स आन,
सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मन पान सिर्फ लेख कर थोड़ा सा संयम थवित थोड़ा सा परंपरा स्पिरिचुअलिटी इंटेलेक्चुअलिज्म प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस सो बढ़ावन योतान जूनस तान प्रारो नव गवर्नमेंट यी बाकी मंशूरस मज यमो बनमत पन मंशूर वनकस हेको कैंडिडेटन पे अप्रोच कर कैंडिडेट पार्लियामेंट्री बाबा वन सा क्या मतलब तह गसित हिंदुस्तान बरस मज हेको न पार्टी कर सान खतर यह पार्टी तमो कर्मस काम और तिहुंद राय आमा बनित सो हेको यूज कर विज नव सरकार नव डिस्पेंसेशन और नो फिजा नो माहौल बन हिंदुस्तान मज सु माहौल हेको पत यूज कर पन्ने behboodi khatir ti panni rehabilitation khatir. Thank you very much. Wonderful words. Thank you very much, Bansa. I would request regarded Nancy Kolji to enlighten we all. Namaskar. Namaskar, madam. Please. Namaskar. Please illuminate the floor, ma'am, with your knowledge, your wisdom, and the way forward for we all as a community. हमारा बूजा 7 बजे पे वनकन बजे 9:30 बजे बेसिकली सन सेकंड जनरेशन बस सीनियर जनरेशन हज मेंबर सपो ये आलोक एमाजन वोन आई फुली एग्री विद हिम एज अ स्लेव्स गथुन कह कि वह हत मरा हत बस मसा त्रामे तह क्या करुन लड़न मरा पन राइटन खतर वन सारी सिर्फ मोबाइलन पे मगर अगर तुम याद आसो फ्रॉम 91 पे या जंतर मंतरस पे नत मिनिस्टर कन गरन ब्रो कन कत कर डेमोन्स्ट्रेशन कित कर कह चीज मिल इत हाँ तो वार फुटिंग मज कर तो तम सीट बने या कह नौकरी बने या कह बेनिफिट वोतन we have done it. It is not obligation to my community, it was our duty. मगर आज वनान अड़न कि कर ब्लैकमेल थविकन प्रिजनस मज I think no player and we don't bother for them. Actually, Government of India has mara jutumutan for your information. As mara chitiman jutumutan Genocide and Atrocities Prevention Bill. Personally, it has been given to the Prime Minister of India, Home Minister of India, and all Parliament members. Magar tat baraga amkin clear कि साने अके organization हम नाव ते तमसुन JKPD तिमा बनावन मिस्टर तनखा सके दोयम बिल यस तिमा पार्लियामेंटस मस पास करना सो कतत गव ऐसे डैमेज कि सन बिल आई त्रावने गोल्ड अथ में मंजन तो ह बिल आई परना but we are again trying we are after Prime Minister of India हाँ कि कर बटन हुन रिहेबिलिटेशन जल खत जल बस पूर श्योर कि अगर कह हेल्प कर इट इज द Prime Minister of India, it is not a Home Minister of India, it is the Prime Minister of India. I can assure the community अगर गथो यकजा करो तमिस निश मेलावन and he will definitely do something. बकाया बूज में वो सारनी हुंदन हाँ 3 वरी ते गई में बोजान 3 वरी हन तो वनकन तह बोजान यह गो सो रोजन बड़े फेमस लकट तमस वन वोट मीटिंग यह गो सो वोट मीटिंग रोजन कह बस महाराज सारनी रिक्वेस्ट करान कि अगर तुम कह चीज आज कमिट करवो तुम त्रो यह वनो कम कम ये पंस कम त्रो कह यू ब्रोन यह चल मोबाइल सह लेट अस मेक अ ग्रुप, let us go to Prime Minister of India, let us go to Home Minister. At पेवान मेहनत करें
मेहनत बगैर अंड नहीं किया मुलाकात को हाँ बिल्कुल मुलाकात कैसे दी नहीं वी विल गो यम साथ अस बिल है तो गयन मारा I think and we are the privileged people and you should prime minister should has hate karan ki appointment ले लो working for this community वो ऐसे ना कोई मंदिर ना कोई स्कूल कश्मीर में ना न्यू क्या मारा वो कहाँ चीज हाँ अश्क ideology such a homeland and that we continue that is our political ideology but agar तो एक नव ideology दी we will support you that's क्या problem इसके लिए बैठना पड़ेगा एक बार सबको वहां बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉट इन मोबाइल नहीं नहीं मोबाइल से काम नहीं होता था पहले कहाँ मोबाइल होते थे पहले कहाँ गाड़ियां होती थी हम लोगों ने डीटीसी बसों में रगड़ा है अपने आप को वो कोई मिनिस्टर नहीं वो कोई पार्टी नहीं है जिसके पास हम जाते नहीं थे और काम करवाते थे जब तक हम प्रेशर नहीं करेंगे मैं पर्सनली 3 बार बाला साहब ठाकरे को मिली हूँ फॉर द एडमिशन तो जब तक आप प्रेशर नहीं करोगे नहीं तो ये कुछ नहीं होगा बट सतीश मुबारक करान मैं वो इंटरव्यू फ्रॉम कश्मीर जो इसने बोल्डली वहां पर कहा है आई अप्रिशिएट हिम कि किस कहीं वो टाइटन आई होप एंड ही विल कंटिन्यू इट ही विल नॉट कम अंडर प्रेशर and then he will continue this and we will support बस वक्त का वारिया से अरवे 9:30 बजे मैं तो बसन सारनी वो बात करने को मौका Thank you very much, Nancy. She's a comrade from Kashmir all along for these 34 years. Let us take the action now. Yes, let us take the action now. Garibid बनने की. Of course, ma'am. वो जो ये चीज़ ना वैसा हमारा WhatsApp से क्या? Thank you, thank you. Bhuwana, Sunil ji, you are here. Can we conclude it? Sunil Vatal ji. Yes. Okay, I think before we conclude, Alok ji raised his hand. He wants to quickly say something. So I just perfectly fine. We will take the just concluding remarks. 2 minutes and then we'll close. Alok ji. I just want to say a few words to Nancy ma'am. Proud of you, the sisters and the daughters of the community like you, who had been all along struggling, sacrificing their life for the community. It's really inspirational and a motivational. I believe that you know the most precious possession in the world we have, that is our own people. And for this people, for the sake of this people, we will struggle, we will fight for the justice. I am ready in 24 hours. There is no problem for the community. मैं उसी कम्युनिटी की लड़की हूँ हाँ बिचस बटन मारा बिचस बट कोर में कोर मुत लोक मुत तैयार मगर के चीज इस मैडम रहना है वो ना I don't agree with her. I know it is a very difficult time. It is a very difficult time. तो ये विश्वान ठीक शु गवर्नमेंट शुना इस गवर्नमेंट उनको ने की ना फिर तंत्र को थोड़ा दो I can fully agree with it. मगर आख चीज़न योतातान्य ऐसन एक्टिव गसाव योतानाय ऐस forceful गसाव तो ततान बनने की I can tell you this. That's right. That's why I'm saying it's a very difficult. There should be action now. Yes. बहुत हो गया बहुत ही हो गया बहुत देर हो गई. Yes, I agree with you. I endorse your views. I say it is a difficult time for our people who were expecting their desired changes. We didn't come, but we have to appeal. The appeal has to continue. The struggle has to continue. Struggle has to continue. Then we will get something. Which is a bird bar example. Yes, so we had been dreaming all along the 3 decades. Governor sab, Sinha sab, guts you can buy the land in Kashmir now. Sugan makana karna na khali, asugan ita representative MLC ita Sarab sab ita usan yama karna na sugan makana khali. Yim makana kunna amit chin. Yiman mas kabza karna amut chu. Kya yima mas kora kanse panye constituency mas makana khali. Correct.
Okay, सतीश Alok भाई ji, over to you. डेफिनेटली ये मैम बहुत सही बात बोल रही है। आप देखो यहाँ पे फार्मर्स ने एक एजुटेशन किया, कुछ गोल था उनका, उधर भी 50 ऑर्गेनाइजेशन थी, बट दे वर एबल टू अचीव समथिंग। सेम वे हमारे यहाँ भी 50 ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नॉट एन वीकनेस, दैट्स अ स्ट्रेंथ। Yes. तो Yes. मैं बोल They रही had a हूँ determination. They had a determination should be determination. there. Commitment should Can be I Yeah, there. speak now? exactly. They had a determination and goal. Here And Bhega we are Kaat commitment. करते हैं. changing. And commitment. We are changing the goalpost, and that is where there is a issue. Bhega Okay. Kaat करते हैं. I think we'll need to wrap up. मगर बिल्कुल Alok ji, over to you now. Yeah. जी. बोलिए आप. ओके नमस्ते Just get it into your minds. Don't fool yourself. Kashmiri Pandit is not a vote bank. Nobody cares for you. Nobody cares for you because you're not a vote bank. And in India, politics is all about vote bank. If you have 2-3%, aap baap ho har kisi ke. Second thing, don't be on the defensive. Which defensive attitude button mas. Kya is it? The government of India owes it to its citizens to address their problems who have been struck by a disaster. You people seem to be all on the defensive. Forget about Amit Shah. What Ashok Ban said, what Nancy ji said, impress upon the Prime Minister. There should be the first voice among Kashmiri Pandits must be, oh, Modi Saab, tumne 2014 mein promise kiya, se pe ye tracts promise ko gao. But do you have the courage? Do you have the courage to do that? You don't have the courage. सिर्फ छुपान करान ये सब कहाँ करान ये excuse. The government of India owes you. Modi owes you. They have used us. Exactly. Then you have idiots like Sanju Verma saying 30,000 have been rehabilitated, and you don't have the bloody guts as Kashmiri Pandit organizations to come out in strength and speak. Nobody has reacted, sir. Nobody has reacted. बकवास कर रही है. And then they are trying to give another story कि 6,000 जो वहां पे हैं PMP jobs, it's a part of return and rehabilitation. It is not. Those poor guys are they are slaves there. It has nothing to do with return and rehabilitation. अगर तिमन बनिए, most of them, over 90% पगा नेरन तिम कशीर अगर तिमन jobs देहन James Maz कांकेरन. So don't be on the defensive. I will tell you something which none of you has the guts as an organization or as individuals to do. If you really want to get the attention of Modi, that means Kashmiri Pandits again together getting and openly going to the media and saying, we might not vote for any other political party, but we will not vote for BJP. Not because your vote matters, Constitution Parva, but it is the making of the statement. और क्यों वोट नहीं करेंगे? Bring in the Hindutva element here. कि हम हिंदू हैं, हमें भरोसा था कि ये हिंदू की सरकार है. मोदी जी ने 2014 में प्रॉमिस किया, बिल्कुल वादा खिलाफी की, एक कदम नहीं उठाया. तो कैसी हिंदुओं की सरकार है? Let us Do you have have the courage? let us Do have you have guts to choose the guts and Nota. courage to do Let's it? have You guts don't to have the choose guts and Nota. courage. Choose the Nota. But announce it. Announce it. But none of you has the guts. I'm telling you very frankly. I have interacted with very many of the Kashmiri Pandit organizations and individuals. You don't have iski chamchagiri, uski chamchagiri, making excuses on behalf of the government, making excuses कि हमारे पास consensus नहीं है. नहीं होगा consensus. It is a job of the government to make sure what it can best do for it. For that, you have to put pressure on Modi. And again, I'm saying our first demand should be Modi ji, PM office mein cell kholo for migrants, which means us, in our case, Kashmiri Pandits, so that we can directly interact. ये अमित शाह, मनोज सिन्हा और ये वो क्या है वो जम्मू का वो राइना वगैरह ये सब बकवास नहीं चाहिए. You people don't seem to realize that Kashmiri Pandit is important for India. You are not able to impress upon it. अगर जन तैत Article 370 हटो तो क्या है? अगर तैत ज़मीन दी कहीं मुसलमान सुकन्या या से मुसलमान किन कहीं सी डोगरस. All through the Dogra rule, all through after 1947, Dogras had equal opportunity to buy land in Kashmir. Did they do it? Did they settle themselves? Do you think any Hindu is going to come? Corporates आएंगे. Do you think Hindus are going to land in? The only Hindu who will possibly go back to Kashmir significantly is the Kashmiri Pandit. क्या इसके ऐशु सुख
यहाँ सन अत धरोहर सन यहाँ our heritage is there, our identity is there. Sorry to say, you people show a total lack of guts, a lack of courage, and a lack of vision. Think. ये फजूल में इधर उधर ये बातें नहीं करो. Focus yourself on what is practical and what can have delivery. Thank you very much. Thank you very much. Manvati ji, I think, I think we should wind up now. Yeah. Sorry for the interruption. One second, Pardeshi, one second. Just one second. आप बोलिएगा. Manvati ji, I think, we have got a ample lot of many things which we could brief. आप बोलेंगे एक सेकंड मुझे. मैं थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ यहाँ जो अभी स्पोक्स पर्सन थे उनके व्यूज से. उन्होंने कहा कि हमारे पास गट्स नहीं है. यहाँ हमने देखा है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी पंडित में थी, जब पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का यहाँ धरना था, कितने 5-6 महीने वो धरने पर बैठे थे. गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं किया. यहाँ जगती में पिछले 2 साल से वहां रिलीफ अनाउंसमेंट के लिए वो 2 साल से धरने पर बैठे हैं. गवर्नमेंट का क्या था? कुछ नहीं किया है. सॉरी टू से, ऐसा नहीं है कि गट्स नहीं है, गट्स हमारे पास है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है. प्लीज कंटिन्यू. Thank you very much. I think Ashok Manvati ji, we have got enough thoughts. भाई साहब, अगर सुनवाई नहीं हो रही है उसमें गलती गवर्नमेंट की नहीं है, उसमें गलती आपकी है. आपको मांगना नहीं आता है. Get it into your mind. हमारे सर फिर हमारे आपको मांगना नहीं आता है. सर हमारे जीन्स में फिर नहीं है कि वो दूसरा रूट. जीन्स मीन्स नहीं लो, बिकॉज आप लोगों के पास विजन नहीं है. आपको मांगना नहीं आता है. आपके पास प्रैक्टिकल एलिमेंट नहीं है. यू हैव अ पुअर अंडरस्टैंडिंग of how to demand from the government, what points to use. हमने जी मांगा कोई सुनवाई नहीं करती. I mean, this is shameful that you're talking like this. के न से इशुनु में बोजान वादुन लागुन, ऐसे सिर्फ वादुन लागान. Again, I'm saying you don't have the courage, you don't have the guts, you don't have the vision how to demand. Sorry to be so blunt. Manvati ji, you wanted to say something? Yeah, so I was just sharing, Manvati ji, I think, we have got a mindful thoughts from all the learned people. I think we can summarize that and take it to the next level where it's reached to the government, to all the functionaries, so that it goes to their desk, and from there we'll take the next action plan, whatever we have to, what could be deemed to be appropriate. Right. You want to say something, please? So that yes, मैं सभी का कीनली सुन रहा था. मेन 2-3 पॉइंट्स हैं जहां पे जो मैं अभी कमिट करना चाहूंगा, बिकॉज आई वांट टू शेयर माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दोज थिंग्स. एक तो ये भी लास्ट में कहा गया गट्स. भाई साहब, कम्युनिटी के गट्स हैं. आपको पता नहीं है सोशल मीडिया पे और अमित शाह को लोगों ने कितनी कितनी गालियां दी हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी दी गई है गालियां. गट्स है कम्युनिटी को. सो लेट्स क्लोज इट हियर. दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. दूसरा चीज है क्रिटिसिज्म की. 2-3 लोगों ने क्रिटिसिज्म पे बात की, स्पेशली भरत काचरू जी ने. हमने ये नहीं कहा कि क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए. हमने ये कहा कि राइटिंग में सरकार को क्रिटिसाइज मत करो, मीटिंग में कुछ भी बोल दो, बाय वर्ड कुछ भी बोल दो, लेकिन जब आप कोई डॉक्यूमेंट देते हो, सबमिट करते हो, दिस इज नो एटिकेट, नो एटीट्यूड that you give a criticism in writing to the government, क्योंकि इससे नेगेटिव आता है. इट्स नेचुरल, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाता है. आप बोलने में तो कुछ भी बोल दो, बट राइटिंग में कभी भी जो अथॉरिटी है क्रिटिसाइज मत करो. ये हम एक्सपीरियंस से कह रहे हैं. ठीक है. नंबर 2, क्रिटिसिज्म करना है, बिल्कुल करना. जो हमारी एसोसिएशन है, दिस इज द फोरम. अगर हम अभी बात कर रहे हैं, ये अगर मीटिंग आज की बुलाई थी, किस लिए बुलाई थी? टू कम टू अ कंक्लूजन, टू डिस्कस समथिंग, ताकि हम कुछ इवेल्युएट कर सके, कुछ स्ट्रेटजी इवेल्युएट कर सके. तो यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म करें कि भाई हाउ वी कैन इवेल्युएट एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स ऑन दिस.
स्पेशली अभी एक ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ दो लोगों ने उनकी बात की, मेरी भी उनमें से एक कल के किसी से बात हुई थी, आई नॉट नेम द पर्सन। उनको मैंने बोला संजू वर्मा के बारे में आपने क्यों नहीं कमेंट किया? तो ही इज एन ऑल इंडिया इंचार्ज ऑफ दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ही सेड मुझे मालूम ही नहीं है, मैं 3 दिन था नहीं कहीं और। अब दिस इज रिडिकुलस, दिस एब्सोल्युटली रिडिकुलस। अभी नैन्सी जी ने बोला दैट उन्होंने कुछ सबमिट किया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को, इट वाज हुडविंक्ड बाय सबमिटिंग सम अदर डॉक्यूमेंट। भाई ये चीजें जब तक हम रियलाइज और क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तब तक कोई वी कैन नॉट इम्प्रूव आवरसेल्व्स। इसलिए क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पॉइंट ये था कि सरकार का क्रिटिसाइज करो, बट इन राइटिंग जब आप डॉक्यूमेंट देते हो इट इज नॉट एडवाइजेबल, इट गोज अगेंस्ट अस। मैं आपको आप एक एग्जांपल देख देता हूँ इसमें। यू सी, आई मीन आई वाज जनरल सेक्रेटरी ऑफ नोएडा फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम। यहाँ हमें रिलीफ मिलता था, जो रिलीफ बंद हो गया। रिलीफ बंद हो गया तो हम जाके मिले लखनऊ में, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्टर से मिले, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर में मिले। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर में, आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर में जो उनके हैंड इन ग्लव्स होते हैं, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये तो हो जाएगा, हम तो रिलीफ रिलीज कर देंगे, लेकिन हमें इतना पैसा चाहिए। ठीक है, मैंने किसी मीडिया वाले से ये बात की, मैंने कहा यार ऐसा है, हम इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या क्या करें? यू नो व्हाट ही सेड? ही वाज इन चार्ज ऑफ दैट न्यूज ग्रुप और होल ऑफ यूपी। लखनऊ में उनका हेड ऑफिस था, मेरा मित्र था। उसने कहा भाई साहब, आपको ये आपका काम तो हो जाएगा, ये रिलीफ तो आपका रिलीज हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, लेकिन ये याद रख लेना दोबारा आपका एक भी काम नहीं होगा, क्योंकि अथॉरिटी में, सरकार में आगे आपका फाइल कोई भी टच नहीं करेगा, वो कितना ही छोटा या बड़ा काम आप लोगों का ना हो। आप उसको ध्यान में रखते हो, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो करो। ठीक है, इस चीज को मैंने कई लोगों से भी डिस्कस किया, अल्टीमेटली वी डिडंट डू ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट। सो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूं कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन द फेस ऑफ इट। आप वर्बली कुछ भी बोल दो, राइटिंग में। तीसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात संजय सराफ जी ने कही कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अगेन रिकंसिडरिंग और रीलुकिंग ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी। इफ दैट इज सो, this is the right time then to write to the government of India for providing us reserved constituencies where we can vote and elect our representative rather than being nominated for whatever reason. So we need to discuss that again with Sanjay ji. Agar ye sach hai, so this is the right time to pursue that, because that would be very important. टेम्पल रिनोवेशन पे भी बात हुई। हमारे मसले हैं, चाहे वो रिलीफ का हो या और भी जगती के या और भी जो दे आर इश्यूज, दे आर वेरी रिलेवेंट इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के साथ रिलेटेड इश्यूज हैं। वी मस्ट कंटिन्यू टू फाइट फॉर दोज, बट एट द सेम टाइम जो टेम्पल प्रिजर्वेशन का, रिनोवेशन का मामला है, वो हमारे रूट्स को हमें कनेक्ट करता है। आज की डेट में वो एक ऐसा इमीडिएट मुद्दा है जो इमीडिएटली हम सबको रिकनेक्ट करेगा। अगर सरकार कल को हमें 2 मरले 10 मरले फ्री में भी देगी या कहीं परचेज भी कर लो, उसमें हमें हो सकता है 2 साल लगेंगे, 10 साल लगेगे परसू करने में, लेने में। बट टेम्पल रिनोवेशन का एक ऐसा इशू है, वो हमें इमीडिएटली रिकनेक्ट करेगा लैंड से। लैंड से, हमारे कल्चर से और हमारे रूट से। तो ये 3-4 बातें कह के मैं ये कहूंगा कि इसको सारा कंक्लूजन करके, सतीश जी आपने बहुत अच्छा किया, ये आज का मीटिंग आपने किया। अब इसको आगे फॉरवर्ड करके आई थिंक वी मस्ट राइट टू जो भारत सरकार ने, जो बीजेपी ने जो कमिटी बनाई है और जो नेशनल हमारे स्टेट की जो पार्टीज हैं,
उनको हमें इम्प्रेस करना चाहिए और लिखना चाहिए कि भाई व्हाट इज देयर Gels kuskarı ise dahi bayırız ve tıs padlagan parda padkada क्या था भरत जी माइक आपके ऑन है। हेलो हाँ अशोक जी बोलिए बोलिए। तो वी मस्ट कंसाइज दिस एंड एक हमें डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए अबाउट इंक्लूजन ऑफ आवर रिहेबिलिटेशन इन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इन अभी इलेक्शन का मैनिफेस्टो है। बैकग्राउंड में उनके क्या है दैट्स वी ऑल नो। बैकग्राउंड में मोदी जी के क्या है क्या नहीं है, फारूक अब्दुल्ला क्या ड्रामा करता है आगे पीछे, वो तो वो सब मालूम है, बट इन राइटिंग वो एक्चुअली जो उनको पब्लिक को क्या बताते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई conclude hereby with that. Thanks very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. Sunil ji, please conclude, sir. Okay, thank you. Thanks a lot. I think it was a very fruitful session. A lot of takeaways and action items for Satish ji to take this forward. And once again, though some of us did deviate from the main topic at times, but I would again thank all of you for sparing your time. And thank you once again. We'll close this call. So thank you once again.